तो आप एक इंजीनियर हैं, नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड, कभी आपने फाइनेंस नहीं पढ़ी, कभी आपने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी। एक बहुत ही फेमस सेइंग है कि डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन अ सिंगल बास्केट। तो 2 साल आपने प्रिपेयर किया, जब क्वालिफाई नहीं हुआ तो आपको लगा नहीं कि मुझे कुछ और भी करना चाहिए कुछ? सो हेलो गाइज, हमारे बीच में आज एक और टॉपर हैं आरबीआई ग्रेड बी 2023 एग्जाम के, मिस्टर प्रतीक गौतम। Hello everyone. हाय प्रतीक। Hello, nice to meet you. सो प्रतीक जबलपुर से है और इन्होंने बीटेक किया हुआ है एनआईटी रायपुर से माइनिंग में। और इनके प्रिपरेशन का एक यूनिक एलिमेंट ये है कि टाइम, जो लोग बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है या 7 से 8 घंटे चाहिए प्रिपरेशन के लिए, तो इन्होंने 2 से ढाई घंटे की प्रिपरेशन के साथ ही एग्जाम को क्लियर किया। वो भी कंसिस्टेंट नहीं थे ड्यू टू इनके वर्किंग आवर्स, क्योंकि 10 से 12 घंटे की इनकी जॉब होती थी, तो कभी कभी 2-2.5 घंटे भी मैनेज नहीं कर पाते थे, बट स्टिल इन्होंने 3rd अटेम्प्ट में अपना एग्जाम क्वालिफाई किया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रतीक। Thank you very much. Thank you. तो हमारे तरफ से आपके लिए कुछ है यहाँ पे अचीवर्स बैच, Thank you very much. इसको प्लीज़ यहाँ पे अपने चेस्ट में लगा लीजिए। और ये बुक है जो आपके डेफिनेटली काम आएगी। Sure, I will. हाँ जी। और ये हमारे साइड से एक अपने से पानी देना बस रेगुलर। बिल्कुल। Thank you. तो अगर आप कुछ शेयर करना चाहें अपनी प्रिपरेशन जर्नी के बारे में। बिल्कुल. हाँ जी प्लीज़। So first of all, thank you very much EduTap team for such a grand and heartful welcome. I really feel grateful to be standing here. For so far, I have been interacting with your courses and all the sirs and teachers through the course that I had. But it feels great to see all of you here. And I will briefly explain about my story. So this was my 3rd attempt and for RBI Grade B. And I would say that this was sort of, in my mind I had made it that this should be it, that there should be no plan B. And I would say the different thing in my journey, as already told by sir, is I was working in a job which was already very demanding. It was a management consulting firm, so 12 hours minimum you have to give for sure every day, and your performance can't go below that, otherwise you are out. So it's always on slope, so work was always there. Now on top of that, this exam preparation had to go on in parallel. So what I used to do is I understood that I won't be able to get many hours, but this 2.5 hours I can give every day, and that's what I did consistently for 3 years. And what that helped me is, oftentimes I was not able to do the entire thing, not able to complete the entire thing, but the preparation never stopped. It kept on going, and I always had that feeling, no, I am coming closer towards this goal. And this exercise obviously was repeated until I cleared this time. So that was one thing. And obviously I would say from the start I have referred to only the EduTap's material. That's my one and only source of preparation. Because I also did not have time to look far and see other things, but not that I found any other thing good as well. So that was the main thing. And as I also told to sir one day when I was talking to that, I did not feel that this exam could be cleared this time when I was giving. So I was like, I will go with the process. I will clear each phase, and then only I will think. I had stopped thinking about the afterthoughts and all other things, and that going with the process actually helped. One other thing, that sort of fun element, I was using one passport size photograph for all the exams until last time. That was not making me clear any exams. This time, before filling this form, I decided I will get a different passport size photo. Maybe that is causing me bad luck. And it turned out great. So this is just a light fun, but that's another element to it. So I think that sums up my story in brief. I can talk in detail with this, sir. हाँ जी बिल्कुल, हम डिटेल में बाकी चीज़ें शेयर करेंगे सेशन में। और आप में से अगर कोई कुछ पूछना चाहता है प्रतीक से तो प्लीज़ पूछ सकते हैं आप। इतना मोटिवेशन 12 आवर्स का जॉब करने के बाद इतना मोटिवेशन कहाँ से आया that you continue your preparation for 3 years? See,
one motivation was that I had realized this exams preparation I started just 2-3 months before I joined my this job, current job. And this is, I'm talking about 2022 and 2020 when COVID lockdown was just in force. So and why I started this preparation was, it was my pure call. It was not that I wanted to enter into government sector just for the sake of it. I had realized in my final year of a college that my heart will sit well in this kind of, the work that is done in government sector at this level. I will create larger impact. I will love to do that work, no matter how much time it takes or whatever it takes. And that passion continued throughout 3 years. And for the first year, I would say this 12 hours working itself was the motivation, that you have to get out of it somehow. So that was another thing. And finally, it was like every other person is doing for some other thing. Some are chasing for MBA, some are masters, some are other thing. I was only doing this thing. Now I can't leave the only thing that I am doing apart from job to go ahead in my career. So I trusted in the process and put all my efforts in this specific exam only for 3 years. ठीक है, सो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर प्रतीक। स्टार्ट करते हैं सेशन। बिल्कुल, हाँ जी, श्योर सर। So, when you aimed at RBI, was it like, I mean, your sole goal कि मुझे RBI ही clear करना है, and was there any specific reason for it, and not, I do not want to know any generic reason. I mean, I know there would be like salary boosting and all that, but was there any specific reason which really motivated you कि हाँ, ये job is one of that job which will actually make me realize my potential? So, how I will like to start is, obviously the top of any government exam comes UPSC. I had already sort of eliminated that option because with the job, I cannot have left the job to prepare for any exam. So I eliminated that option. Now after that, the only prestigious exam and the job that matters, that actually gets you to do that kind of work that will give you that sort of self-fulfillment feeling, was RBI. And there are many other jobs, these. And while preparing for RBI, I also, used to write SEBI and PFRD and all these things just for the sake of doing it. But I always felt that the impact that working in RBI you will never have in these organizations, because these are very specific. RBI, after preparation, I felt like it is running a government of its own. So I felt that this is the the best thing to aim for. And then I sort of just focused only on that. I did not move here and there. Obviously, pay was the one of the main reason at the start. But even the current job that I am in was, obviously, corporate pays you good at the end. But at the sort of the allure of RBI had got into me, and I realized that it has to be this one or nothing else. Because as I said, no, after investing 1-2 years in preparation, now you will go to another field. You have to again start from zero, and that will not give you the kind of satisfaction that this job or the what it brings to you. So that's why I was solely focused on this thing, RBI. ठीक है, फिर चलते हैं। ठीक। Any other questions, anyone? मैंने वीडियोस में तो सभी को देखा है, मगर देखो सबसे ज़्यादा तो मैंने आप ही को देखा है सर, और फिर सर को देखा है लास्ट ईयर, सर के अंचित सर आप ही हैं? अंचित सर वो है, कंफ्यूज हो रहा हूँ। दीपक सर तो है ना? दीपक सर है। आप दीपक, ओके सॉरी, मैं कंफ्यूज हूँ, मैं आपको दीपक समझता था। तो हाँ, नहीं सर तो आप दीपक सर है ना, सर अंचित सर है। आप लोग को तो बहुत देखा है मैंने, और गुरकीरत सर शायद अभी दिख नहीं रहे हैं, अभी गए हुए हैं घर। तो उनके जो है एनालिसिस देखे एग्जाम के बाद की, और बाकी सर को भी देखा है रिसेंट में, बाकी हाई मैम लोग को भी देखा है। तो बट आई रियली अप्रिशिएट कि आफ्टर क्लियरिंग ये कम से कम इन पर्सन इंटरेक्शन हो रहा है, और ज़रूरी है, मतलब नहीं तो टू मच फील्स लाइक कि ऑनलाइन रियल में ही सारी चीज़ें हो जा रही हैं। तो मेरे को तो मतलब उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ भी होगा, इसलिए जब आई रिसीव्ड कॉल एंड इट वाज सेड दैट we'd like to invite and all these things, so I was more than ready. मतलब I am a person who I like the in-person interactions only more than the online ones. So obviously feels great to
see the people you are interacting online and so throughout. And this thought always came to my mind when RBI, you know, keeps on changing syllabus some or the other thing. And I'm like, I am not able to come into grip of it when I am preparing. How are the, you know, the people who are running the institute, the EduTap, you know, coming with the material so quickly and all those things. So I really appreciate it. Like I think, and this is a very important bridge, I think, you know. And sort of, it's not that I'm sort of flattering EduTap, but this is what I have seen. After I got selected, I got call from many of my juniors and other you know, colleagues in this firm or the college and all, and they were sort of already preparing for RBI in some or the other way. They might not be giving full push, but whenever I asked them, everyone, you know, they were purchasing EduTap course. Like even before I have sort of told them that, you know, you need to go for this. So it has become very important bridge, I think. And then the pace at which this exam is becoming popular, I think the scale will go very high, because now people have realized that what RBI is, and I think it is just the start. I think the whatever we are doing, I am preparing the institute that is you know, facilitating the everything. I think this it's just the beginning of, I think, this entire thing that's going to become big. Yeah. Yeah, thank you very much, sir. प्राइवेट सेक्टर की जॉब के साथ प्रिपरेशन करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। कम से कम 7 to 8 आवर्स चाहिए आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन के लिए। ये सारे एक्सक्यूजेज, सारी एजम्पशंस हमारी बनाई हुई है। गाइज, इन सारी एक्सक्यूजेस को गलत साबित करते हुए इस साल आरबीआई ग्रेड बी 2023 एग्जाम को क्लियर किया है मिस्टर प्रतीक गौतम ने, जिन्होंने ना सिर्फ प्राइवेट सेक्टर जॉब के साथ बल्कि डेली 2 से 2.5 घंटे की प्रिपरेशन के साथ इस एग्जाम को क्लियर किया है विथ रैंक 49। सो प्रतीक, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वेलकम टू एडुटैप। थैंक यू वेरी मच, सर। सो प्रतीक, मुझे आप एक चीज़ बताइए कि आपने बीटेक माइनिंग में की हुई है फ्रॉम एनआईटी रायपुर, राइट? इसका कोई भी रिलेशन नहीं है आरबीआई के साथ में? कोई नहीं है। तो कब और कैसे स्टार्ट हुआ आपका ये जर्नी, आपका ये प्लान कि मुझे आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम देना है? तो जैसे ही मेरा कॉलेज खत्म हुआ, ग्रेजुएशन मेरा पूरा हुआ 2020 में, एंड इट वाज टाइम जब कोविड लॉकडाउन हर जगह अनाउंस हो रहा था। एंड मैं कॉलेज से प्लेस हो चुका था एक मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म में, उसकी ज्वाइनिंग में करीब 3-4 महीना था। एंड कॉलेज के फाइनल ईयर में, इवन आफ्टर गेटिंग प्लेस्ड, आई हैड रियलाइज्ड कि माई हार्ट लाइज इन गवर्नमेंट सेक्टर, और उसमें जिस तरह का काम होता है, आई वुड लाइक टू डू दैट मोर। आई वुड, माई हार्ट लाइज देयर। तो फिर मैंने यूपीएससी के बारे में आइडिया, आई वाज टॉइंग विद द आइडिया ऑफ यूपीएससी एंड प्रिपेयरिंग फॉर इट, एंड वो लग नहीं रहा था कि पॉसिबल हो पाएगा इस जॉब के साथ। तभी मेरा बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, ही केम अप विद सजेस्टेड दैट ही हैज हर्ड अबाउट दिस एग्जाम फ्रॉम सीनियर्स, and I also recollected that yes, some of our seniors who graduated had mentioned about that this is a very good exam, should be tried for. That's when I seriously started searching for it, and after few days of searching, I quickly realized that this is a very you know, prestigious exam and a reputed job that is also not easy to crack, and that too from a person who is not of that background. Like, I am coming from an engineering background, and so it seemed like it's not going to be something that's not an easy goal for sure. And उसी समय ये रियलाइजेशन और इसी अंडरस्टैंडिंग और कहना चाहिए कि जानने समझने के बीच में आरबीआई एग्जाम से लगाव हो गया कि अब तो यही करना है, ये क्लियर हो गया, और वहाँ से शुरू हो गई फिर इसकी प्रिपरेशन की तैयारी। तो आप एक इंजीनियर हैं, नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड, कभी आपने फाइनेंस नहीं पढ़ी, कभी आपने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी, तो आपको जब आपने स्टार्ट किया तो आपको लगा नहीं कि मुझे फाइनेंस भी पढ़नी पड़ेगी, मुझे इकोनॉमिक्स भी पढ़नी पड़ेगी? तो एक डर नहीं लगा मन में कि एक तो मैं पहले ही प्रिपरेशन में ऐसी चीज़ की स्टार्ट कर रहा हूँ जो मैंने कभी पढ़ी नहीं है, प्लस मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, क्योंकि मैं वर्किंग भी रहूँगा, नई चीज़ें मुझे कंप्लीटली पढ़नी, तो एक मन में फियर नहीं आया कि मैं कैसे पढ़ पाऊँगा, कैसे कम्पीट कर पाऊँगा इस एग्ज़ाम में? जी, अगर मैं बताऊँ तो शुरुआत में तो थोड़ा सा था ये चीज़ कि फाइनेंस इकोनॉमिक्स ये वो चीज़ है जो क्लास 11-12 से ये सब्जेक्ट लेकर के पढ़ते हैं, हम तो उनसे बहुत पीछे हैं, ना वहाँ पढ़े ना कॉलेज में पढ़े। तो उस समय पे ये फीलिंग थी कि कैसे हो पाएगा, मगर कहीं ना कहीं एक ये वो भी था कॉन्फिडेंस कि एज इंजीनियर्स दे आर नाउ डूइंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग, मतलब अपार्ट फ्रॉम बिकमिंग डॉक्टर वी हैव बिकम एवरीथिंग। तो कहीं ना कहीं वो ये था कि वेयर एवर वी आर एंटरिंग विल बी एबल टू डू इट, और उसके साथ शुरू कर दिया। एंड आई वुड लाइक टू टेल कि मेरे लिए इकोनॉमिक्स फाइनेंस की फील्ड जो है, मतलब मेरे को इस फील्ड का अप्रिसिएशन था नहीं उसके पहले, मतलब ड्यूरिंग माई कॉलेज ईयर्स और स्कूल टाइम में आई यूज्ड टू थिंक कि साइंस इज द मेन थिंग एंड दैट ड्राइव्स द वर्ल्ड, उसी से सारे इनोवेशन हो रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर इज जस्ट डूइंग मंडेन थिंग्स, नॉट क्रिएटिंग एनीथिंग न्यू, एंड इकोनॉमिक्स फाइनेंस आर
नॉट दी वर्ल्दी डिसिप्लिन्स, बट आफ्टर स्टडिंग दिस जो मेरे को मतलब मेरा वर्ल्ड व्यू बदला, मेरा सारी चीज़ों को देखने का नज़रिया और एक्चुअल हाउ थिंग्स आर वर्किंग, हाउ वर्ल्ड इज वर्किंग, दैट टाइम आई गॉट टू रियलाइज कि पहली चीज़ तो यही है, इकोनॉमिक्स फाइनेंस होगा तब तो कंट्री होगी, तब कंपनीज होंगी और तब ये सारे इनोवेशन और बाकी चीज़ें हो पा रही होंगी। तो वो रियलाइजेशन भी हिट किया एक साथ में, और तब ये भी लगा कि अब ये चीज़ पढ़ी जा सके ना जा सके, पढ़नी तो जरूर है। तो दैट्स हाउ इट, मतलब आपको मजा भी आने लगा प्रिपरेशन, मजा आने लगा प्रिपरेशन। राइट। सो प्रतीक, आपने 3 अटेम्प्ट दिए हैं आरबीआई में, दिस वाज द थर्ड अटेम्प्ट, राइट? सो अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने फेज 2 लिखा था, सेकंड अटेम्प्ट में आपने प्रीलिम्स भी क्वालिफाई आप नहीं कर पाए थे, फेज थर्ड आते आते अटेम्प्ट थर्ड आते आते आपको लगा कि इट सीम्स इम्पॉसिबल, मतलब अपना टाइम आएगा भी कि नहीं आएगा। अटेम्प्ट फर्स्ट में आप बहुत श्योर थे कि अपना टाइम आएगा, थर्ड अटेम्प्ट में आपको लगा कि अपना टाइम आएगा भी कि नहीं आएगा। तो मल्टीपल फेलियर्स के बाद, कंटिन्यूस फेलियर के बाद वो मोटिवेशन कैसे था कि यार मुझे प्रिपेयर करना है और मुझे आरबीआई ही प्रिपेयर करना है, दूसरे एग्जाम आपने दिए भी नहीं ऑलमोस्ट ना आपने प्रिपेयर किया, तो मतलब वो मोटिवेशन जो एक रहता है, क्योंकि ऐसे में क्या होता है मोटिवेशन जनरली चला जाता है, बच्चे सोचते हैं ठीक है हम नहीं करेंगे, टाइम भी नहीं मिल पा रहा है, अच्छा खासा कर रहा हूं मैं तो जरूरत भी नहीं, तो वो मोटिवेशन कहाँ, तो स्पार्क कहाँ मिला आपको कि जिसमें आप कंटिन्यूसली प्रिपरेशन करते रहे 3 साल तक? ठीक है, तो मैं आपको अपने ईयर बाय ईयर ही बता देता हूँ कि फर्स्ट ईयर में तो जब मैंने प्रीलिम्स मतलब आरबीआई का लिखा, आई वाज लीस्ट एक्सपेक्टेंट कि मेरा ये हो जाएगा क्लियर, और मगर हो गया। एंड व्हेन यू, और उस समय मेरे उतनी सीरियस प्रिपरेशन थी नहीं, बिकॉज मैं जॉब में भी न्यू था, तो वहाँ भी आई हैव टू स्ट्रगल टू गेट इनटू थिंग्स, तो इसकी भी प्रिपरेशन न्यू थी। तो बट क्योंकि निकल गया और फेज 2 लिख लिया, तो दैट गेव मी दैट होप, और मेरे को लगता है ये होप बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिल जाती है कि जब आप प्रीलिम्स लिख लेते हो ना, और फेज 2 आप एक बार प्रीलिम्स क्लियर करके फेज 2 लिख लेते हो, क्योंकि दैट इज डिस्क्रिप्टिव एंड यू विल ऑलवेज राइट, तो वो आपको एक अलग ही रिगर दे देता कि नहीं यार यू कैन डू इट, दिस एग्जाम, दिस इज पॉसिबल। और उसको लेते हुए मैंने अगले साल बहुत इंटेंसिटी से ट्राई किया, सारी चीज डिस्क्रिप्टिव की, मतलब व्हाट आई टिक्ड ऑल द चेक बॉक्सेस दैट आई कुड हैव। और लेकिन हुआ ये कि व्हेन आई गेव द प्रीलिम्स एंड आई सेड कि आई गेव ऑल द सेक्शंस गुड, जो क्वांटिटेटिव था उसमें मैं थोड़ा सा कहना चाहिए कि जिस तरह के क्वेश्चंस आए थे थोड़ा सा नर्वस हो गया, एंड आई कुडंट कीप माय काम एंड कंपोजर, और उस वजह से मेरा प्रीलिम्स नहीं निकल पाया। तो दैट वाज द टाइम जब कहना चाहिए कि मोटिवेशन तो नहीं, लेकिन ये जरूर लगा कि इतने सारा हार्ड वर्क जो है साल भर का, दैट्स गॉन डाउन द ड्रेन, और नाउ हाउ टू कंटिन्यू फ्रॉम हियर। तो एक तो सबसे पहला मोटिवेशन तो ये था कि नहीं, आई वुड नॉट एक्सेप्ट डिफीट, कि ये क्वांट अकेला मेरे को, एंड आई न्यू कि हर बंदे का, मेरे को लगता है ना जो भी प्रिपरेशन कर रहे बच्चे, किसी का ना एक आधी वीक लिंक होता है, बाकी मोस्टली सब स्ट्रांग होते हैं, सब सेम चीज तैयारी कर रहे होते हैं। एंड इफ आई वुड हैव गिव इनटू दैट फियर ना कि ये नहीं हो सकता है सॉर्ट ऑफ नहीं, तो फिर मैं अपनी उस रियलिटी के साथ आगे रह नहीं सकता था कि आई ट्राइड फॉर समथिंग और जो मेरे को मिली भी नहीं, और मैंने अपना पूरा दिया भी नहीं। तो इमीडिएटली आफ्टर फ्यू डेज मेरे को न्यू सिटी मूव करना पड़ा, फिर भी लेकिन मैं क्वांट की करता रहता था प्रिपरेशन, और मगर आई वुड नॉट से कि मैं पूरा थ्रू आउट एकदम वापस बाउंस बैक कर गया। इट टुक मी गुड 4-5 मंथ्स, और ये सब मैं बात कर रहा हूँ जून मई 2022 में प्रीलिम्स आई कुडंट क्लियर, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइमलाइन ऑफ जून से आपके जो जनवरी और ये सब समय की बात कर रहे हैं हम। तो उस दौरान आई वाज आल्सो टॉकिंग विद आइडिया ऑफ अदर एग्जाम्स, तो ये सब जब मैंने उन पे गया तो मुझे ये रियलाइजेशन हो कि इस सब की मेरे को लग रहा है कि आई हैव गुड, लेकिन आई ओनली माइट हैव ओनली 50-60%। 50-60% में यू कांट कम्पीट विद समवन हु इज गिविंग 100%। तो मेरे को लगा कि ये हर जगह जाने से कुछ नहीं होगा, बैकअप लेने से कुछ नहीं होगा। आई केम बैक टू माई होम दैट इज आरबीआई, जहाँ पे अपना सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है, तो कहीं अगर कुछ हो सकता है तो वहीं हो सकता है। पूरे एफर्ट्स फोकस करके उसी जगह पे फिर लगाने की उसमें मैं आगे बढ़ गया। सो दैट्स हाउ आई केप। अगर मतलब ओवरऑल आप जानना चाह रहे कि क्या मोटिवेशन था, तो ये था कि करियर में इफ़ यू हैव स्टार्टेड समथिंग यू नीड टू सॉर्ट ऑफ गिव इट अ क्लोजर, यू कांट लीव इट इन बिटवीन। और एक अंदर ही से मतलब वो एक आग जो जल गई थी ना कि एक बार किसी ने ये सपना दिखा दिया ना, अभी वो आप उस दरवाजे को बंद नहीं कर सकते कि नाउ यू आर नॉट गेटिंग इट। तो मैं अपने आप को उस रियलिटी के साथ लाइफ भर नहीं जीते देख सकता था कि अब ठीक है मैं यही जॉब कर रहा हूँ, मैंने किसी चीज़ की प्रिपरेशन की और छोड़ दी। तो वो एक मोटिवेशन था कि इट हैड टू कम टू अ प्रॉपर क्लोजर एज यू एक्सपेक्टेड, और उसी के साथ मैं लगा हुआ था तैयारी में। एक बहुत ही फेमस सेइंग है कि डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन अ सिंगल बास्केट। हाँ। तो 2 साल आपने प्रिपेयर किया, जब क्वालिफाई नहीं हुआ तो आपको लगा नहीं कि मुझे कुछ और भी करना चाहिए, कुछ और दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि प्रिपरेशन आपकी, क्योंकि अगर हम देखें नाबार्ड की, राइट, तो ऑलमोस्ट 80% चीज़ें ओवरलैपिंग है। तो आपके मन में ये नहीं है कि मैं नाबार्ड एक बार देकर देखता हूँ या सीबी एक बार देकर देखता हूँ, ऐसा ना हो कि मैं बहुत ज़्यादा इस पर रिलाई कर रहा हूँ, क्वालिफाई नहीं हुआ तो मेरा टाइम भी वेस्ट हुआ। ये थॉट आपके मन में नहीं आया पहले बीच में कभी? एक ये भी था कि बिल्कुल आया था थॉट कि मैं नाबार्ड से तो मैं उतना इंटरेस्टेड नहीं था, मगर सेबी के लिए आई वाज श्योरली इंटरेस्टेड कि ये हो सकता है तो इट वुड बी गुड। मगर
अगेन दो फैक्टर थे जो मेरे को, मैंने अपना 100% दे सकता था मगर नहीं दिया। एक ये था कि ये सारे एग्जाम्स जब आते थे जब आरबीआई भी आगे पीछे इनके होने वाला रहता था, तो इट्स लाइक इफ यू आर गोइंग फॉर वन यू आर सॉर्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइजिंग इन अदर। तो एक ये चीज रहती थी, इफ यू आर रेडी विद दैट। दूसरी चीज ये रहती थी कि सेबी हो, नाबार्ड हो, ये सब ऑल दीज आर वेरी वेरी गुड इंस्टीट्यूशंस ऑन देयर ओन राइट, मगर व्हेन यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर आरबीआई एंड यू हैव सीन व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इट इज, उसके आगे फिर यू नो सॉर्ट ऑफ गेटिंग योरसेल्फ गेटिंग कॉम्प्रोमाइजिंग विद अ सब ऑप्टिमल थिंग, वो थोड़ा सा नहीं लगता था मेरे को मोटिवेटिंग चीज की। नहीं फिर इतना है तो आई वुड पुट द एफर्ट्स इन आरबीआई ओनली। और कमिंग टू दैट की पुटिंग ऑल माय एफर्ट्स इन वन बास्केट, एज आई सेड कि आई वाज आल्सो, मतलब ये सारे एग्जाम्स भी मैं दे रहा था, ऑल्दो होल हार्टेड अटेम्प्ट नहीं था किसी पे, लेकिन आई वाज गिविंग मे बी 60-70% ऑफ माइंड। तो ये रियलाइजेशन हो गया कि ऑल योर एग्स वन बास्केट में हो ना हो, लेकिन आपकी सबसे ज्यादा कहना चाहिए कि जो भी तैयारी है वो इसी की है, फाउंडेशन आपने इसी का बनाया है, तो घर आप इसी पे बिल्ड कर पाओगे। एंड फिर मैंने उसी चीज़ को फॉलो किया। तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है। अगर आप प्रतीक की बात सुनेंगे कि इन्होंने रिलाई किया, इन्होंने मेहनत सिर्फ एक एग्जाम के लिए की। हम जनरली क्या करते हैं, जो भी नोटिफिकेशन आता है हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, राइट, और वहाँ पे हम 3-4 महीने अपने अच्छे वेस्ट कर चुके होते हैं। इसीलिए आपको एक एग्जाम की तरफ अपना गोल बनाना है कि मुझे एग्जाम क्वालिफाई करना है, और पूरे होल हार्टेडली आपको उसकी प्रिपरेशन में लग जाना है। एन एग्जाम्पल आपके सामने है कि अगर आपने एक चीज़ पर फोकस किया तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। प्रतीक आपके सामने एक लाइव एग्जाम्पल है। तो प्रतीक, दिस वॉज योर थर्ड अटेम्प्ट, राइट? Yes. ये तीसरा अटेम्प्ट है। तो ऐसी कौन सी मिस्टेक्स जो आपने प्रीवियस 2 अटेम्प्ट्स में की थी उनको इंप्रूव करके आपने इस साल सिलेक्शन लिया है? ठीक है, तो मैं कहूँगा कि जैसे प्रीलिम्स है, एज वी हैव सीन ओवर द इयर्स, आरबीआई ने प्रीलिम्स का पैटर्न पूरा चेंज कर दिया है ना। हमने देखा था कि पहले क्वांटिटेटिव कठिन का पैटर्न बदला, रीजनिंग तो एज यूजुअल जो रहता है उनका था, जनरल अवेयरनेस में भी ओवर द इयर्स उन्होंने कहना चाहिए कि काफ़ी कठिन कर दी हैं चीज़ें। तो एक चीज़ तो जो ये की थी कि 21 का जनरल अवेयरनेस वॉज ऑन एक्सपेक्टेड लाइन्स, 22 का दे चेंज दी पैटर्न, मगर फिर भी काफ़ी आसान वाले थे। तो मगर इतना रियलाइजेशन था कि एटलीस्ट जनरल अवेयरनेस में यू नीड टू रीड दी करंट अफेयर्स इन डिटेल, दे आर नॉट आस्किंग वन लाइनर थिंग, दे आर अबव ऑल दैट। तो वो चीज़ थी। और तो पहली चीज़ जनरल अवेयरनेस में वो समझ में आई, अगर मैं फेज़ 1 की बात करूँ तो। और रीजनिंग और क्वांट का ये समझ में आया कि यू हैव टू प्रैक्टिस योर सेल्फ कि आप उस टफ सिचुएशन में क्या होगे। कि होता क्या है कि एवरीवन इज प्रिपेयरिंग फॉर इट, पीपल आर गिविंग मॉक्स एंड ऑल, मगर वहाँ हो क्या रहा है कि यू हैव टू सॉल्व, ठीक है, लेट अलोन इफ यू आर गुड यू विल सॉल्व 10+ क्वेश्चन, बट जो अल्टीमेटली यू हैव टू गेट द मिनिमम नंबर ऑफ मार्क्स। और मैं मान सकता हूँ कि अगर वो मार्क्स इफ इट इज 5, तो यू नीड टू सॉल्व दोस 5 क्वेश्चंस करेक्टली। तो मैंने मतलब अब जितने भी मॉक्स प्रैक्टिस किए वो सारी किए, इस सेटिंग में किए, टफ से टफ से में, कि ये होना चाहिए। इफ यू आर नॉट डूइंग दिस हियर यू विल नॉट बी एबल टू डू दैट देयर। तो आई वुड से कि ये जो मोस्टली लोग जो है आगे की प्रिपरेशन ज़्यादा करने लग जाते हैं और भूल जाते हैं। तो मेरे को लगता है प्रीलिम्स कोई भी जो फर्स्ट टाइमर है प्रिपरेशन के लिए ना, should put all efforts in phase 1, because if you clear phase 1 that will give you enough boost. And RBI I would say is not an exam that is an easy nut to crack, that it was one time 2019 when it was objective that you will come and will clear it in 3-4 months of preparation. Right. Now people are finding it hard. Those who are clearing in first time are really genius and they have done strike every right chord that they can. But तो आई वुड से कि जो प्रीलिम्स में मैंने इन 2 चीज़ों पे ध्यान दिया, और आगे के लिए भी आई वुड सजेस्ट कि जितनी भी करंट अफेयर्स लोग पढ़ रहे हैं, एंड आई वुड सजेस्ट कि दे शुड रीड इट इन डिटेल। मतलब doesn't matter if you are covering everything, every other appointment, every other book, but you should cover in detail every news related to government that is given in PIB, all you should go to the details of it. So that is about phase 1. And phase 2, what I did is, until now I was ignoring the reports and all that RBI used to mention. This time I had realized that they have specifically mentioned some report on currency and finance in syllabus, and some other reports also. Right. So I prepared their notes for them, and bang, 2-3 questions came directly from report. And also this year they asked the descriptive question on the reports itself. 15 marker question on right. report. So that is one thing that you should not ignore these reports and all if they are mentioning it. So that is one thing I would say for I think it was in ESI. Now one other thing which I missed and I regret is in management I had done all other chapter, but there is a chapter called general management that I used to think this is very generic thing, this I can do any time, it does not need to be. And this time they asked a 15 marker question on some Henry Fayol's 14 principle. Okay, so another realization is that these management and all, these are the marks on the table, so you should first grab them, you should first
sort of cover their syllabus, because this is the going to give you biggest ROI, management and all. So don't leave it how much ever think the lengthy it is, but it will give you too many marks. So that is one thing I missed this time. So this is a sort of learning for other people, that do not miss at least on management, because it's going to give you a lot of returns. Other different thing that I did this time is whatever sort of things I was reading in ESI or finance, I was also looking at what is PIB saying about these things in final year, what news is there in PIB, because RBI these days seems to be lot of hell bent on this PIB and what are the news from there, and these schemes are what are the news from here. So I would say कि at least for ESI लोगों को PIB के साथ में रख के पढ़ाई करनी है, and if you will do that, so there is no one stopping you to clear that. Right. Third thing, if I may, or sure. So that is about schemes. Now until now ये होता था कि schemes ऐसा रहता था कि करने को तो 300 भी हैं, आप सारी कर लें. फिर अब आप करने बैठते हैं, कुछ लोग को लगता है कि ऑब्वियसली कोई स्टार्ट करेगा, दे विल थिंक कि ईयर पूछेंगे, बजट पूछेंगे, कितना है बजट है इस स्कीम का, दैट्स वेयर दे विल एंड. मगर दैट्स वेयर आरबीआई स्टार्ट्स. उन्होंने वो सब चीज़ें पूछना बंद कर दी हैं कि आपका स्कीम का ईयर क्या है, बजट क्या है. तो आपको डिटेल में स्पेसिफिक्स मालूम होने चाहिए. तो फिर व्हाट आई रियलाइज्ड इज कि मतलब ऑब्वियसली एट दैट टाइम दिस एडुटैब समरी शीट वाज माय सेवियर. मतलब आई डायरेक्टली वो माय 30 marks 20-30 marks to do the schemes only, or even more than that came in objective and all. If there was some booster document of 50-55 pages, I realized that this I made that my bible of schemes, did that rigorously and religiously. And I would if you, those who have given the paper and those who have seen previous year paper of finance and management bank, they gave directly 15-20 objective questions from that. So that is another thing I differently, that don't go very lengthy on schemes, because the schemes you have to read lot of data, you will feel your mind is becoming computer. Right. So even the 50 schemes, the specifics, if you are able to revise well, that those are in news, that's good. So I think overall, if I have to summarize, my learnings would be focus on phase 1 for sure, don't ignore it. And definitely don't ignore your weak part, because you don't want to directly get to see your weak part in the exam. So work on it. For phase 2, do not ignore the reports, and don't widen your sources too much, because the narrower sources you have, but you need to go deep on that. That's the thing. For interview, I think in coming questions we'll talk about it. राइट. सो प्रतीक, आपने बताया, जब हमारी बात हुई थी, आपने बताया था कि आपका जो इंक्लिनेशन था टुवर्ड्स द प्राइवेट सेक्टर, यू वर थिंकिंग कि जो प्राइवेट सेक्टर है वही सारी क्रिएटिविटी, वही सारी इनोवेशन कर रहा है, गवर्नमेंट एजेंसीज आर जस्ट इम्प्लीमेंटिंग दैट, राइट. फिर वो जो आपका इंक्लिनेशन था, जो आपका पर्सपेक्टिव था, वो कैसे चेंज हुआ कि फिर आप सीधा प्रिपरेशन में लग गए गवर्नमेंट एग्जाम की, और फाइनली यू क्रैक द आरबीआई एग्जाम? So yes. तो व्हाट वाज द मोमेंट जब वो चीज़ आपके चेंज हुई कि मतलब नहीं, ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट एजेंसीज आर आल्सो डूइंग समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट? तो वो चीज़ कैसे आपके माइंड में आई? तो दो जगह से आई. एक तो ये था कि व्हेन आई वाज इन फाइनल ईयर ऑफ कॉलेज, तो आई वाज इन्वॉल्वड इन स्पॉन्सरशिप ऑफ, आई वाज हेड ऑफ दिस एनुअल फेस्ट कमिटी ऑफ कॉलेज, सो इन्वॉल्वड इन द स्पॉन्सरशिप एंड ऑल, एंड आई स्टडीड इन द स्टेट कैपिटल रायपुर. So there were many government offices, so I used to visit there, and I liked the aura of that. I liked that these are not doing clerical jobs, or everyone, they are taking important decisions. But again, at that time I did not have the appreciation of the kind of work they are doing. It's just like that appreciation came of how entire thing is working when I started preparing for RBI. I think everyone should prepare for, because in our course curricula, if you see in the school curriculum, obviously these things are taught in civics and all, but the kids, they are, and the usual kind of pedagogy that was followed until I studied was, these are the notes, you just have to study and write an exam. But when I prepared for it, I realized the entire thing, how the administration is working, how schemes are being made, why government is there, why they are making policy, and how they are impacting people, and why economics is so important, and there are people who are, constantly sort of giving different theories what to do in this situation. And mind you, this preparation I started in COVID times, when economy itself was being tested of entire world. So it's like ना, what happened to me कि किसी ने पर्दा हटा दिया आंखों से, और एक बार में सारी पिक्चर क्लियर हो गई कि दुनिया चल कैसे रही, सिस्टम चल कैसे रहा. तो वो जब एक बार क्लियर हो जाता है आपको, तो समझ में आ जाता है कि जब लार्जर पर्सपेक्टिव दिख रहा है, तो आपको फिर उसका हिस्सा बनना है, उसमें पार्ट लेना है. और खासकर अभी इंडिया जितने इंटरेस्टिंग टाइम्स में है, अपनी कंट्री, अगल बगल के अपने देश देखें तो कहीं ना कहीं परेशान है. बिल्कुल. इंडिया भी अपना उस स्टेज पे आ गया है कि यहाँ पे सारी चीजें अब इनके लिए सही वर्क कर रही हैं.
तो उसमें ऑब्वियसली प्राइवेट सेक्टर हैज़ बिग कंट्रीब्यूशन, दे आर डूइंग देयर जॉब, मगर इफ़ यू वांट टू प्ले लार्जर रोल तो गवर्नमेंट इज द आंसर। राइट। और एक प्रेशर होता है कि अच्छे कॉलेज से बिलोंग करने का, जैसे आपने एनआईटी रायपुर से आपने बीटेक की हुई है माइनिंग में, राइट? तो एक प्रेशर रहता है कि मैं बहुत अच्छे कॉलेज से हूँ तो आई शुड क्लियर द एग्जामिनेशन एज अर्ली एज पॉसिबल, तो वो एक प्रेशर तो रहता ही है माइंड में। तो आपके मन में था ऐसा प्रेशर जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी? आई वुड से कि कॉलेज का वो तो था, मतलब कि है उस जगह से, और जनरली कॉलेज के साथ के लोग जो भी जैसे गेट की प्रिपरेशन कर रहे थे वो अच्छी रैंक ले आते थे, कैट में हाई रैंकर्स हुआ करते, तो जो इनफैक्ट कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट जो उसी सिटी के थे, रायपुर सिटी के, वो सब हाई रैंकर्स हाई बोस्ट करते थे क्योंकि ये सारे बच्चे क्लियर करते थे। तो एक वो तो था कि मतलब यहाँ पे जो जा रहे हैं सब ऑलरेडी दे आर डूइंग गुड। मगर मेरे को क्या था कि व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपरेशन तो बहुत ज़्यादा एंथू के साथ तैयारी की थी, क्योंकि कॉलेज में एक आपका अलग ही हाई होता है, आप अलग उसमें होते हो, बिकॉज कॉलेज में यू फील दैट यू आर द किंग ऑफ द वर्ल्ड, और रियल वर्ल्ड इज आउटसाइड ऑब्वियसली। तो फर्स्ट टाइम व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर इट, इट वाज लाइक कि आई विल डू विथ माई फुल रिगर। लेकिन ना इस एग्जाम ने अच्छे तरीके से हैम्बल कर दिया मेरे को, और अच्छे तरीके से टेस्ट करके टेम कर दिया, एंड इट ओनली बिकेम क्लियर, मतलब जब ही क्लियर हुआ एग्जाम, जब उसने अच्छे से टेस्ट कर लिया कि यू आर वर्दी ऑफ इट टोटली और नॉट। मतलब फ्लूक नहीं है ये एग्जाम। अगर कोई सोच रहा है कि इट इज समथिंग दैट यू विल जस्ट कम 2-3 महीने में आप कुछ करोगे और हो जाएगा, इतना प्रोसेस उन्होंने बदल दिया है। इवन इफ यू क्लियर फेज 1 and phase 2, they will identify you in interview. You are just a by chance candidate. So they are first and foremost thing I would say to everyone who aspires to clear this exam is कि कोई ऐसा क्रैक और हैक नहीं चलने वाला है इस एग्जाम पे। अब इफ यू हैव टू बी डेडिकेटेड एस्पायरेंट एटलीस्ट फॉर 6 months, that is the for sure thing. There are people who are coming from UPSC, they might find it easier if they had that level of grip on the things, but if not that, then there is no hack that will do it, because they will throw you out in interview by giving you the number of marks which will not get you cross the line. Right. So, that's what I realized. सो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आप एनआईटी से, राइट, प्लेसमेंट भी आपने ले लिया था, ठीक है, उसके बाद आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करने का सोचा, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं लगी कि यार मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर देता हूँ, सपोज 1 बार में नहीं निकला, 2 बार में नहीं निकला, 3 बार में नहीं निकला, तो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है, जो आप वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में रहकर ग्रो कर सकते थे, कुछ नई स्किल सीख सकते, तो एक बहुत बड़ा एक फैक्टर था वो। तो आपके माइंड में फैक्टर आया कि नहीं आया कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है प्रिपरेशन में कि नहीं है? बिल्कुल थी, उसकी थी, सारी चीजों की थी, बिल्कुल। क्योंकि जब आप जॉब ऑलरेडी हेक्टिक कर रहे हो और ये कर रहे हो, मतलब आप अपना पूरा का पूरा समय इन्हीं चीजों में दे रहे हो, आप फैमिली से कट होगे, फ्रेंड से कट होगे, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो डेफिनेटली इन्वॉल्व है, बिल्कुल इन्वॉल्व है। और अगर मेरे को किसी ने स्टार्टिंग में बता दिया होता कि ये चीज इतनी आसान नहीं, 3-4 साल लगने वाले, तो क्या पता मैं करता भी नहीं। बिल्कुल। इसलिए आपको ना सारी चीजें स्टार्टिंग में मालूम होनी भी नहीं चाहिए। यू शुड जस्ट नो दी ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ थिंग्स की जितना चालू करने के लिए जरूरी है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नजर आ रही थी, मगर वही जब शुरू किया ना तो चीज़ें एकदम ब्राइट स्पॉट देखा और आगे बढ़ते गए। बस ये था कि छोड़े नहीं, उसके बाद जब एग्जाम ने उठा के पटकनी दी तो टिका रहा उस चीज़ पे, और दैट्स व्हाट वर्कड। राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके जर्नी की कि जॉब के साथ आपने प्रिपरेशन की, राइट, 10 से 12 घंटे का आपका वर्किंग आवर्स होते थे जनरली, आप सिर्फ पढ़ाई के लिए 2 से ढाई घंटे दे पाते थे डेली, उसमें भी आप कंसिस्टेंट नहीं थे, कई बार वो भी नहीं दे पाते थे, वीकेंड्स में थोड़ा बहुत आप स्ट्रेच करते थे, बट अगेन अगर हम ओवरऑल देखें तो 2 से ढाई घंटे आप रेगुलर दे पा रहे हैं 11-12 घंटे की जॉब करके। मतलब कैसे पॉसिबल है? मतलब सीरियसली अगर मैं भी सोचता हूँ तो एक बार को मुझे लगता है मैं तो नहीं करता, तो मतलब वो कैसे पॉसिबल है लगातार उस चीज़ पे बने रहना? तो एक चीज़ रियलाइज़ ये हुई प्रिपरेशन के दौरान भी कि आप जैसे अपन पढ़ते नहीं, कुछ दिन छोड़ देते हैं पढ़ाई, मतलब ऐसे कुछ दिन नहीं पढ़ रहे हैं, तो आपको एक ही चीज़ है दैट इज कीपिंग यू गोइंग, वो है आपकी प्रिपरेशन। एटलीस्ट आपको ये तो लगेगा कि आप क्लोजर टू गोल पहुंच रहे हो। मेरा भी नहीं निकला पहली बार में, दूसरी बार में तो बहुत ही बुरी तरीके से नहीं निकला, प्रीलिम्स में ही बाहर हो गया। अब उसके बाद भी अगर मैं जो थोड़ी पढ़ाई भी कर रहा था वो भी छोड़ देता हूँ, तो एक ना एक दिन सबकॉन्शियसली आपके ब्रेन में बैठ जाएगा कि नहीं हो रहा है, एंड स्लोली यू विल मूव आउट ऑफ इट। तो एक ये चीज़ रियलाइजेशन होता था जब भी पढ़ाई छोड़ता था। और मैं ऐसा नहीं करता था कि रोज़ जो है 2-2.5 घंटे जब पढ़ना है तो प्रॉपरली वाली सारी चीज़ ही पढ़नी है, एकदम बेस्ट तरीके का प्लान इंप्लीमेंट करना है। मेरे को लगता था सबसे आसान चीज़ जो है जो रोज़ की जा सकती थी वो थी करंट अफेयर्स, क्योंकि इट्स लाइक वो लेजर रीडिंग टाइप की होती है, न्यूज़पेपर पढ़ने जैसी चीज़ होती है। तो आप करंट अफेयर्स उठा के पढ़ो, आपको अब क्योंकि आप 2-3 साल से पढ़ रहे हो तो आपको पता चलता जा रहा पिछले साल ये हुआ था, अब ये हो रहा है, तो वो एक फ्लो बना के रखता था। ऑब्वियसली बहुत हेक्टिक होता था, है ना, कि आप जो है सुबह से 2-2.5 घंटे जैसे निकाल रहे हो, फिर आप तुरंत काम पे लग रहे हो, फिर आ रहे हो, तो मगर मैंने यही चीज समझ गया था कि अगर ये भी नहीं किया तब तो और कोई चांस ही नहीं है। तो दैट्स माय ओनली शॉट एंड दैट्स द ओनली टाइम दैट माय जॉब वाज विलिंग टू गिव, लाइफ वाज विलिंग टू गिव। तो जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे थे लगातार, राइट,
तो अब आपकी 10 से 12 घंटे की जॉब, उसके बाद सिर्फ आप 2-2.5 घंटे आप पढ़ पा रहे थे, उसमें भी कंसिस्टेंट नहीं थे आप कई बार। तो ऐसे एस्पिरेंट जो फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे थे, जो 7 से 8 घंटे या 10 घंटे डिवोट कर, तो आपके माइंड में कभी ये नहीं है कि मैं उनसे कैसे compete करूंगा, क्योंकि कंपटीशन तो सेम ही है, एग्जाम सेम ही है, आप कम पढ़ोगे तो आप पीछे रह जाओगे, जो ज़्यादा पढ़ रहे हैं वो आगे बढ़ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं माइंड में आ जाता है कि मैं कैसे compete करूंगा। तो इस फीलिंग को आपने कैसे टैकल किया? जी, एक तो ये है कि आपका कंपटीशन सबसे पहले तो खुद से होता है कि आपने अपने लिए जो गोल सेट किया आप उनको पूरा कर पा रहे हैं कि नहीं, सबसे पहले तो ये है, ठीक है। और जितना टाइम मैं पढ़ता था ऑब्वियसली उसमें सारे गोल्स जितने सेट करते था पूरे नहीं हो पाते थे, तो उसको कंपनसेट करने का तरीका फिर यही रहता था कि जो कभी वीकेंड्स आ रहे हैं या लॉन्ग वीकेंड्स आ रहे हैं, कभी कुछ ऐसे मौके लग रहे हैं, इसमें आप फिर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करिए। तो ये कहना चाहिए कि आपको काफ़ी हद तक उस बराबरी में ला देगा। और जब एग्जाम जैसे, क्योंकि 2-2.5 घंटे पढ़ के आपको फ्लो मेंटेन रखना है आपका, अब जैसे एग्जाम करीब है, अब नाउ यू नो कि अब नोटिफिकेशन आ चुका है, 2-3 महीने में एग्जाम होना है, तब आपके पास ना जो थोड़ा थोड़ा समय भी आप यहाँ वहाँ कर रहे हो तो उसको एग्रीगेट करके आपको पढ़ना होता है। तब फिर आपको सारी डिस्ट्रैक्शंस अलग करने होते हैं, सोशल मीडिया सब कुछ। अब जब सब अलग हो जाएगा, आप पूरे रोबोट बन जाओगे, तो आप फिर वो 2-3 घंटे अच्छे से डेडिकेट कर लोगे और यू विल कम क्लोज टू इट। और सबसे बड़ी चीज़ जो है टू कीप यू गोइंग, नॉट नेसेसरीली आप सारी चीज़ कवर कर पाओगे, है ना, नॉट नेसेसरली सारी चीज़ रिटेन होगी, बट व्हाट यू हैव टू डू इज की नॉट बीट योरसेल्फ ओवर इट। आपका कॉन्फिडेंस आपको खुद ही मेंटेन करके रखना है इन सब एग्जाम्स की प्रिपरेशन में, क्यों, और पर्टिकुलरली आरबीआई की प्रिपरेशन में, बिकॉज आप खुद का ही मोराइल लो कर लोगे तो इट्स टफ टू देन अगेन इवन डू व्हाट दैट मच दैट यू आर ऑलरेडी डूइंग। तो वो एक चीज़ है, मेरे को लगता है कि आपको और ये जैसे मैं बात कर रहा हूँ ये 2-2.5-2-3 घंटे की, आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम फॉर 2-3 ईयर्स नाउ। तो मेरे लिए वो 2-3 घंटे अब इनफ है क्योंकि मैं कर रहा हूँ। लेकिन अगर जैसे कोई पहली बार ही प्रिपेयर कर रहा है, अब जैसे कोई 4 महीने बाद ही अटेम्प्ट करना चाहता है, तो उसको ऑब्वियसली इसको कंपनसेट करने के लिए थोड़ा और कहीं ना कहीं से वीकेंड में फिर उसको काफी पढ़ना पड़ेगा, कभी मौका लगे तो एक आध लीव लेकर के ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। ये तरीके होते थे, मतलब मैं जिनसे कहना चाहिए कि कंपनसेट करता था, कभी लगता था कि काम कम है तो फिर लीव लेकर के उस दिन ज़्यादा पढ़ लिया। तो ये तरीका रहता था। बस आपको खुद को मोटिवेटेड रखना है, खुद को नहीं को नीचे छोड़ देना है कि मेरे से नहीं हो पा रहा है करके। लेकिन आपका रूटीन देखा जाए तो पूरा फिक्स हो चुका था, राइट? मतलब पूरा दिन अब अपने साथ ही होते थे, सुबह उठ के पढ़ लिया, फिर ऑफिस चले गए, फिर रात में लौट के आए, फिर अपने काम में लग गए। तो आप काफी एक्सट्रोवर्ट रहे हैं अपनी कॉलेज लाइफ में भी, अपनी फेस्ट कमेटी में हेड रहे, आपने बताया आप लीडर रहे, राइट? तो उसमें फिर कितना मतलब मुश्किल था ट्रांजिशन की, इतने एक्सट्रोवर्ट होते हैं कि साथ साथ फिर फ्रेंड से कट ऑफ, मतलब कट होना, उसके बाद फिर सोशल मीडिया से कट होना, उसके बाद फिर अपनी प्रिपरेशन करना, मतलब थोड़ा सा ट्रांजिशन में कितना आपको दिक्कत आई इसमें? इसमें मैं तो कहूँगा कि चैलेंजिंग था, नो डाउट, बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि चैलेंजिंग नहीं था। चैलेंजिंग था, जॉब चैलेंजिंग थी, जॉब के साथ में ये प्रिपरेशन चैलेंजिंग थी, और एग्जाम का कंपटीशन और बदलता पैटर्न चैलेंजिंग था। मैंने जिस साल फर्स्ट ईयर पूरी प्रिपरेशन की थी उस समय तक एग्जाम ऑब्जेक्टिव ही होता था। 2019 तक, 2020 में एग्जाम नहीं हुआ था। 21 में अचानक से नोटिफिकेशन आ रहा है, पेपर का पैटर्न डिस्क्रिप्टिव हो गया, ये हो गया। तो आई वाज लाइक कि ये सारे चेंजेस हमारे समय में ही क्यों हो जाते हैं, अक्सर लोगों को लगता है प्रिपरेशन करते वक्त। मगर ये था कि अब जो भी है, जैसा भी है, देना ही पड़ेगा। और मेरे को इस चीज़ का जो आप पूछ रहे हैं ना कि कॉलेज का जो एक हाई, जिस तरह के एनवायरनमेंट में था मैं और जैसे लोग थे, और उसके बाद जो हो गया, तो वो ये लगा कि वो चीज़ हुई तो होगी, क्योंकि इतना सा बिजी था। उसका रियलाइजेशन जब होता था ना कि आप तो टोटली कट ऑफ हो और एक ऐसे एग्जाम को चेस कर रहे हो जो कि और भी कठिन है, तो ये रियलाइजेशन होता था। मगर इस रियलिटी को एक्सेप्ट भी करना ज़रूरी है, तो रियलिटी से भागने से कुछ नहीं होगा। और फिर ये भी ज़रूरी है कि अगर आपने इतना कुछ करके इतना एफर्ट यहाँ दिया है, जब सब कुछ छोड़ करके आप यहाँ दे रहे हो, तो इसको फिर पूरा करो। हाफ हार्टेड, मतलब फिर एक चीज़ समझ में आ गई नहीं जब फर्स्ट ईयर बाद की, जब सेकंड ईयर दिया, हाफ हार्टेड अटेम्प्ट कुछ नहीं होने वाला है। अगर करना है, पूरा दिल जान लगा के करना है, तो दे दो, आप अपना पूरा लगा दो। उसके बाद फिर एटलीस्ट आपको कोई क्वेश्चन करे ना करे, आप खुद को क्वेश्चन नहीं करोगे कि मैं इससे बेटर कर सकता था, फिर आप भले प्रिपरेशन छोड़ भी दो, बिकॉज हाफ हार्टेड अटेम्प्ट्स में नहीं होने वाली है चीज़। तो ये बात आप तो समझ गए थे, आपके फ्रेंड्स कैसे समझे? मतलब फ्रेंड्स तो हमें कहाँ छोड़ते हैं कि चलो पार्टी करने चलते हैं, चलो घूमने चलते हैं, मतलब फ्रेंड्स ये बात कैसे समझे कि मतलब यार प्रिपरेशन कर रहा है तो सीरियस है, तो अभी छोड़ देते हैं? मतलब फ्रेंड्स को समझाना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, उनको मना कर पाना डिफिकल्ट हो जाता है। हाँ। तो वो चीज़ कैसे फेस किया आपने? फ्रेंड्स को बताया कि नहीं बताया? कोई बहाने मार देते थे आपकी, यार मैं अभी कहीं और बिजी हूँ, कुछ और कर रहा हूँ? तो ऐसा रहता था कि जब मैंने काफ़ी फ्रेंड्स को बताया हुआ था, कुछ एक तो मेरे साथ ही प्रिपरेशन कर रहा था, बाकी लोगों को पता था, मगर उनके दिमाग में ये रहता था कि गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन तो सब लोग बोल देते कि कर रहे हैं, तो ऐसे ही, उसके लिए कोई ऐसा अलग से इतना बिजी होने की जरूरत नहीं है। तो उन लोग उस चीज़ की सीरियसनेस को उतना ज़्यादा नहीं समझ पाते थे, अंटिल अभी तक क्लियर नहीं हुआ, अब जाके वो सीरियस समझ है कि मैं पढ़ा भी हूँ इसके लिए इतना। तो
उनके साथ भी ऐसा रहता था, आप टोटली कट ऑफ में कर नहीं सकते हो कि मैं भी वैसा बंदा नहीं हूँ कि पूरा वो हो जाऊँ। तो दोनों चीज़ को मिला करके किया, लेकिन जब जैसे कि इस बार ये रियलाइजेशन था कि थोड़ा गायब होना पड़ेगा। और ये चीज़ अक्सर मैं लोगों से कहता भी था कि जिनका यूपीएससी निकलता है या वो भी निकलता है वो गायब हो जाते हैं। तो इस बार तो मैं मानता हूँ कि मैं गायब हो गया था और गायब होकर के फिर निकल पाया। ये आपको 4-6 महीने तो गायब होना पड़ेगा निकालना है तो जैसे आप एक सोशल एनिमल रहे हो, राइट? तो कभी ऑफिस से पार्टी वगैरह होती होगी, फंक्शंस होते होंगे, तो कभी बंक मारा आपने सिर्फ पढ़ाई करने के लिए? मतलब दिल से आ जाता है कि यार मैं बहुत अच्छी पार्टी में छोड़ देता हूँ, यार पढ़ लेता हूँ, मतलब ऐसा किया आपने कभी? किए हैं बहुत से ऐसे मौके, जब कुछ मौके थे ऐसे जो कहना चाहिए कि छोड़े भी थे कि पढ़ाई की वजह से कि अब नहीं जा पा रहा हूँ या जो भी है रीज़न, तो वो चीज़ की थी। बाद में गिल्ट आता होगा जब दोस्त बोलते हैं यार बहुत मजा आया, तू था नहीं यहाँ पर, तो ऐसा कुछ होता था बाद में? लगता था, क्योंकि आपको एक चीज़ ये लगती है कि आप एक एग्जाम में इतना एफर्ट दे रहे हो, वो एग्जाम आपको 3 साल से कुछ नहीं दे रहा है, आप वहीं के वहीं हो। अभी इसी टाइम में किसी और ने जो है जॉब में इतना एफर्ट दिया, कहीं और आगे चला गया, किसी और में दिया बहुत चला गया, मतलब उधर आपका इतना सारा एफर्ट भी इतना वो दे रहा है, यहाँ आपको कुछ नहीं दे रहा है। तो ये एक फीलिंग आती थी कि कहीं ना कहीं फिर उसी में ज़्यादा अच्छा तो नहीं है। लेकिन जब भी ये रियलाइजेशन होता था तो तुरंत कहना चाहिए कि ऑफिस के एक्सटेंडेड सिनेरियो को देखते थे 5 साल 10 साल बाद, तो समझ में आता था वही काम तो जो भी है, लेकिन आपने अब जो चीज़ देख ली है उसके आगे वो फीका ही लगेगा। आप भले अपने आप को डिनायल में रख लो, और फिर वापस वो मोटिवेशन मिल जाता था करने का। राइट। कभी ऑफिस टाइम में पढ़ाई करने की कोशिश की आपने, जो 10 से 12 घंटे आप रहते थे, क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम था 10 से 12 घंटे, और कभी हम सोचते हैं बीच में लंच टाइम में जल्दी लंच करके कर लेते, कभी ऐसा मौका हुआ आपके प्रिपरेशन जर्नी में? ये कोशिश करता था, मोस्टली वो एग्जाम करीब होता था कि पूरा फुल एफिशिएंसी दी जाए, और मोस्टली लाइट चीज़ ही की जा सकती है। ऐसे समय में करंट अफेयर आप कर सकते हैं, कभी चाहे तो मॉक दे लिए। लेकिन मेरे को वो फील हमेशा एक आ गया था कि आप जब आपका माइंड एक जगह ऑक्यूपाइड है तो वो दूसरी जगह उतनी एफिशिएंसी, मतलब मैं अपने बात कर रहा हूँ, ऑब्वियसली सबके साथ नहीं होगा, उतने अच्छे से नहीं वो दिखता था इम्पैक्ट, मतलब। तो मैं समझ गया कि इतना इसका वो नहीं है। उसका तरीका ये है कि फिर आप काम अगर जल्दी ख़त्म कर सकते हैं तो एक चांस है कि आप फिर शाम में अपना समय निकाल लीजिए पढ़ने के लिए। ये था, इसलिए मैंने ये ब्लॉक बना रखा था कि ये समय पढ़ाई का है और ये समय एग्जाम काम का है। तो जब जॉब में भी ना, अब ऐसा होता है कि ऑब्वियसली आप जिस जगह पे कर रहे हो, कहीं पे भी हो, जैसे बहुत से लोग बैंक्स के भी इस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, आप फी की परफॉर्मेंस देकर के आपको भी मज़ा नहीं आएगा। अगर आप काम सही नहीं कर रहे हो तो देयर आर पीपल हु विल टॉन्ट यू एंड विल गिव यू फीडबैक फॉर इट। फिर आप वो चीज़ भी आपके दिमाग में चल रही होती है। इट्स नॉट लाइक कि दिमाग में एक शटर लगा हुआ है कि अभी काम बंद अभी पढ़ाई चालू, सारी चीज़ दिमाग एक साथ डील कर रहा होता है। तो मेरे को लगता था कि ऑप्टिमम बैलेंस बनाना जरूरी है। जब ऑफिस का काम है तो सिर्फ ऑफिस का काम है, लेकिन जब पढ़ाई है तो पढ़ाई। कभी एक चीज़ मैंने जरूर इंश्योर की थी, जैसे मेरा काम सुबह 11 बजे से चालू होता था, बहुत बार अलग अलग जब मैनेजर्स या उन लोगों के साथ काम किया, टीम सीनियर्स के साथ, जिन्होंने बोला कि जल्दी करो ये करो, तो इस पर मैं स्टिक था कि इसके पहले नहीं करूँगा मैं, क्योंकि वो समय भी अगर मैं जेपरडाइज कर देता तो फिर पढ़ाई के लिए कुछ बचता नहीं था। तो उसको इंटैक्ट रखा, मतलब दो चीज़ को सेपरेट रखी और दोनों को सही से चलाने की कोशिश की बस। और एक 3 इडियट्स का बहुत अच्छा डायलॉग है कि जब हमारा मतलब हमें कहीं सक्सेस नहीं मिलती तो हमें बुरा लगता है, लेकिन जब दोस्त को मिल जाती तो हमें ज़्यादा बुरा लगता है, राइट? तो आपके साथ भी कुछ पीयर्स होंगे, कुछ कलीग्स होंगे जो मतलब अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, तो एक डिमोटिवेशन होता था उनको देखकर, या कहने मतलब ऐसे कह सकते हैं, मतलब आपकी फीलिंग आती थी यार इनका हो रहा है, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ पिछले 3 सालों से, तो एक वो फीलिंग आ जाती थी कभी? हाँ बिल्कुल आती थी वो फीलिंग। तो मतलब सबसे ज़्यादा पिंच करने वाली फीलिंग होती है आपको, जो फेस करते हो आप। और सबसे बड़ी बात ये है ना, आपके अलावा कोई जानता नहीं है ये चीज़। यू आर अलोन इन दिस रट, अकेले आप फंसे हुए हो कि अब आप ही जान रहे हो कि आपने क्या 3 साल से दे दिया है इसमें, और यू आर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ इट। तो वो फीलिंग तो डेफिनेटली आती है, मगर फिर यही फीलिंग आपको मोटिवेट भी करती है कि ठीक है, यू हैव गिवन मतलब एवरीथिंग टू दिस, आपको इसको पढ़ने में भी मज़ा आ रहा है, ये प्रोसेस भी सही लगती है, आपको इसके बारे में बात करके अच्छा लगता है, तो डटे रहो बस इस जगह पे। यही है जहाँ आपको कहना चाहिए कि रिजल्ट्स निकलेंगे। तो ये मेरे को लगता था, मतलब बाकी एनवी वाली फीलिंग जो होती है सबको आती है कि फ्रेंड्स आगे बढ़ गए हैं, ये है वो है, मगर एट द एंड आप देखिए कि किसी की भी ना कॉलेज की, मेरे को ऐसा लगता है कॉलेज तक ना हम लोग सब एक कहना चाहिए कि किसी और की कमांड में होते हैं, है ना। एक सिस्टम होता है, आपको स्कूल में सिस्टम है, हर क्लास बनी हुई है, आपको पढ़ना है, देयर समवन लीडिंग, आपको उस सिस्टम में चलना है ना, उसमें आप टॉप मार सकते हो। कॉलेज में भी सेम मोर और लेस सेम होता है, लेकिन जब अपन उसके बाहर की लाइफ में आते हैं तो आपको क्या चीज़ करनी है, इसके ड्राइवर आप खुद होते हो कि क्यों करनी है आपको वो चीज़, क्यों मोटिवेट कर रही है आपको, आगे भी खुद ही लेके जाओगे आप। और उसके बाद ना मेरे को लगता है कि फिर ज़्यादा रेस रह नहीं जाती लोगों के बीच में और आपके बीच में, आपकी रेस फिर सिर्फ अपने ही साथ रह जाती है कि आप जो भाग रहे थे उस रेस को आप फिनिश लाइन तक ले जा पा रहे हो
या बीच में छोड़ रहे हो। तो ये मेरा मानना है इस मामले में। और अगर इस बार नहीं होता तो क्या करते फिर आप? तो क्या मन में तो ये सोचता था कि नहीं होता तो छोड़ देता इस बार, लेकिन मेरे को लगता है कि मैं फिर से एक अटेम्प्ट फिर देता अगर नहीं हुआ होता तो। लेकिन मान के तो यही चल रहा था कि नहीं होगा तो छोड़ दूंगा, कुछ और ट्राई करूंगा ये वो। लेकिन जब भी उस थॉट पे जाता हूँ तो कुछ और ट्राई करने वाला जो वो है वो उतना इंटरेस्ट नहीं करता है। कुछ और ट्राई मतलब वही कॉर्पोरेट जॉब में आगे बढ़ना, स्विच वगैरह कर लेना, वो सारी चीज़ें आती हैं मन में, मगर वो इंटरेस्ट नहीं करती थी। तो मेरे को लगता है कि शायद मैं फिर से एक ट्राई तो और देता, क्योंकि जिसके आप इतना क्लोज हो, अगर जैसे मान लीजिए इस बार मेरा नहीं होता तो इट वुड हैव बीन लाइक कि मैं इंटरव्यू तक दिया, मेरा नहीं हुआ और ये मेरा फर्स्ट ही इंटरव्यू था। राइट। तो मैं ये अज्यूम करता कि ठीक है मेरे को कुछ और करने की जरूरत है, अच्छा फेज 2 या इंटरव्यू में, और एक अटेम्प्ट और देता। कहीं ना कहीं पहले से तो हम आगे बढ़ चुके हैं। पहले से आगे बढ़ चुके हैं, बिल्कुल। वो चीज़ रहती है। और आज के टाइम में प्रतीक एक बहुत इंपॉर्टेंट है सोशल मीडिया से बच के रह पाना, राइट? आप फेसबुक देखो, आप इंस्टाग्राम देखो, लोग रील के पीछे पागल है, दिन भर रील बना भी रहे हैं, रील देख भी रहे हैं, टाइम पूरा वेस्ट कर रहे हैं, राइट? तो जब आपसे मेरी बात हुई थी आपने बताया था सोशल मीडिया आप यूज करते थे, लेकिन एग्जाम से 1-1.5 महीने 2 महीने पहले आप उसको थोड़ा सा डीएक्टिवेट कर देते थे। तो वो जो अंदर से आता है कि मुझे यार अब छोड़ देना है यहाँ पे, तो वो कैसे आप उसको डिसाइड कर पाते थे? क्योंकि मैंने भी पहले देखा था, मैंने भी ट्राई किया था, फिर कुछ टाइम बाद वापस से यार इंस्टॉल कर लिया, फिर से बना लिया, फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो उस चीज़ को मतलब कैसे आपने टैकल किया कि यार नहीं मुझे अब नहीं यूज करना जब तक मेरा एग्जाम नहीं हो जाएगा? तो एक चीज़ मैं ये करता हूँ कि फ़ोन से बचने के लिए, जब खासकर लंबे स्ट्रेच में पढ़ना होता है, फ़ोन को कोशिश करता हूँ कि दूर जा करके रखाऊँ कहीं, किसी दूर कमरे में। उस दौरान किसी का फ़ोन आएगा तो नहीं उठाऊंगा। ये कोशिश करता हूँ कि मैं फ़ोन चलाऊँ ही कम से कम। अब जब चलाऊँ, क्योंकि मोस्टली अब जब आप फ़ोन चलाने जाते हो, या तो आप किसी से फ़ोन में बात करोगे या सोशल मीडिया चलाने लग जाओगे आप, वन और दी अदर वे, है ना? तो मेरा एक तरीका ये रहता है कि मैं फ़ोन ही दूर रख देता हूँ, उससे मैं लंबे स्ट्रेच से बच जाता हूँ और फिर इस स्ट्रीक को कंटिन्यू करने की कोशिश करता था। आज भी इतने घंटे तक फ़ोन नहीं चलाऊंगा, इसी की रिकॉर्ड मान लेता था और पढ़ने लगता था आगे करके। तो ये एक तरीका रहता था। और फिर आप कंटिन्यूस पढ़ाई में इतना होगी, थक जाओगे तो फिर आप नहीं चलाओगे, ऐसा रहता था। और फिर जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि जब एग्ज़ाम एकदम करीब होता है, काम भी चल रहा है, इतनी सारी पढ़ाई भी करनी है और समय भी नहीं मिलता है। हाँ, लेकिन अगर आप उसको 1-2 बार तो आपको थोड़ा हार्ड स्टेप लेकर के छोड़ना पड़ेगा, नहीं चलाना और फ़ोन दूर रख दो। अगर पास में फ़ोन रहेगा ना, विद इन फ्यू मिनट्स यू विल इंस्टॉल इट, यू विल स्टार्ट स्क्रॉलिंग वॉट एवर सोशल मीडिया यू आर यूजिंग। तो वो बड़ा एक कहना चाहिए कि चैलेंज है कि आपको थोड़ा सा तो फोन से दूरी बनानी होगी, बहुत जरूरी है उस टाइम पे। बट ऐसा जरूरी नहीं कि आप पूरा थ्रू आउट द प्रिपरेशन ही दूर रहो सोशल मीडिया से। मतलब जो लोग बोलते हैं मैंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, मैंने सोशल मीडिया का अकाउंट नहीं बनाया, तो मतलब वो मैंडेटरी नहीं है, बट आपको खुद पे कंट्रोल होना चाहिए कि मुझे कहाँ पे रुकना है। हाँ। वो चीज़ आपको पता होना चाहिए। अगर उस पर आप क्लियर है तो डेफिनेटली मतलब फिर ये सारी चीज़ें सब बैलेंस करके आप चल सकते हैं साथ में। जैसे कि आपको बताऊं कि फेज 2 के अब इस बार मुश्किल से कह सकते हैं आप 16-17 दिन में लेते, और इतना बड़ा सिलेबस था जिसको आपको पूरा करना, रिपोर्ट से लेकर के स्कीम से लेकर क्या नहीं पूछा उनने, है ना? आपको लगेगा तो हो ही नहीं सकता, ये तो रिवाइज छोड़ो, पहली बार नहीं हो सकता। तो अब जब इतना सारा आप करोगे, कुछ तो रिवॉर्ड ढूंढेगा बॉडी और माइंड की, मेरे को मिल के आ रहा है अभी फिलहाल इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत तो हो गई है सोशल मीडिया चला के लोगों को। तो मैं अपने आप को थोड़ा सा फिर मौका देता था और कभी कभी 5-10 मिनट चला लेता था दिन में, 10-15 मिनट, कि हाँ ठीक है, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल भी नहीं चलाना है, नहीं तो पता नहीं आपका वो मोटिवेशन नहीं चला जाए पढ़ने का। तो इतना भी कोई वो नहीं है, मगर लेकिन वही उस लूप से दूर रहना, मतलब किस चीज़ को ब्रेक करना जरूरी मेरे हिसाब से क्या है कि लोगों की हैबिट में या अपन लोगों की हैबिट में फिक्स बैठ गया है कि रात में सोने के पहले 1 घंटा तो स्क्रॉल करना ही है, चला ही लेना है। आप इनएडवर्टेंटली भी करोगे ना चाहते हुए भी, आपकी एकदम आदत में फिक्स हो गया, वो रूटीन में फिक्स हो गया। वो रूटीन नहीं बनना चाहिए मेरे हिसाब से। कैजुअली आप अगर कभी मन कर रहा हो चला लिया तो चला लेना चाहिए, कोई उस पर हार्ड वो नहीं है। रूटीन से तोड़ना जरूरी है, उसका रूटीन से हटना जरूरी है। फिर आपने फिर एग्जाम दिया, जब इस बार फेज 2 में जब आपका रोल नंबर दिखा आपको पीडीएफ में, तो वो कैसी फीलिंग थी? पिछले 2 बार से दिखा नहीं था आपको फेज 2 वाले पीडीएफ में, तो वो कैसी फीलिंग थी इस बार? क्योंकि इस बार मुझे आपको इंटरव्यू भी देना था, मतलब तो एग्जैक्टली क्या चल रहा था आपके मन जब वो एग्जाम का फेज 2 का रिजल्ट आया जब? तो ऐसा था कि फेज 2 का रिजल्ट की मेरी फीलिंग जो थी खुशी की, मेरे को लगता है कि उसमें मैं ज़्यादा खुश हुआ हूँ जितना मैं इंटरव्यू के बाद हुआ हूँ। तो ऐसा था कि फेज 2 के रिजल्ट ऑब्वियसली थोड़ा दिन लेट हो चुका था, तो अब पता नहीं था कब आना है। फिर अचानक से ड्रॉप हो गया, रिजल्ट आ गया और मैं काम वाम कर रहा था ऑफिस का, तो वैसे तुरंत मैं नहीं देखने वाला, मेरे को पसंद नहीं आता कि मैं सट से देख लिया, और मैं आराम से ही देखता हूँ, मेरा होना है या नहीं होना है, मैं उस फीलिंग को आराम से ही जीना चाहता हूँ। तो मैं पहले काम वाम बंद किया और खोला पीडीएफ। वो मेरा दोस्त वैसे मेरे को जो दे रहा था साथ में, वो देख चुका था और कुछ मैसेज कर रहा था, मैंने उसे कोई मैसेज नहीं देखे। फिर नाम पढ़ा, फाइनली फेज 2 में वो रोल लिस्ट में नाम देखा, तो मतलब बहुत ही सॉर्ट ऑफ अनडिस्क्राइबल भी फीलिंग थी।
लेकिन इतनी थी कि आपने चलो इतने समय से आप एफर्ट दे रहे हो यहाँ तक तो पहुंचे, रिकॉग्नाइज तो हो रहे हैं एफर्ट आपके, आप यू आर नॉट पुटिंग द एफर्ट्स इन वेन। तो बहुत ही खुशी लगी, कहना चाहिए फीलिंग थी, और लगा कि नाउ यू विल फाइनली स्टैंड अ चांस टू सिट इन फ्रंट ऑफ आरबीआई बोर्ड, जिसका आप इतने समय से बस सुन रहे हो और करते जा रहे हो प्रिपरेशन। तो बहुत ही अच्छी कहना चाहिए फीलिंग थी। और फिर पेरेंट्स को भी बताया तो दे वर ऑल्सो वेरी हैप्पी कि मतलब अब उसके अच्छा मेरे पेरेंट्स का ऐसा है कि इफ़ आई मे एक्सप्लेन अबाउट दिस, वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं होते हैं मैं क्या चीज़ें कर रहा हूँ, या मेरा यंगर ब्रदर भी है वो क्या कर रहा है, उनका ये है कि दे लेट अस फ्री कि जो तुम्हें करना है करो, एक ब्रॉड बता करके गाइडलाइन, ऐसा कुछ नहीं कि करना ही है, तो उनकी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है। और इसीलिए वो कभी भी इस प्रोसेस में, इस एग्जाम में कभी मेरे साथ उतना इन्वेस्टेड नहीं रहते थे, अभी कहाँ हुआ तुम्हारा, अभी क्या हुआ, क्योंकि वो एडेड बर्डन हो जाता है। अब जैसे इस बार मैं जब फेज 2 क्लियर कर लिया तब दे रिकॉग्नाइज कि हाँ दिस इज टर्निंग इनटू सीरियस अटेम्प्ट थोड़ा बहुत। अगर उसके बाद उन्होंने कोई ऐसी होप्स नहीं डाली कि इंटरव्यू में ऐसे करो वैसे करो, ये था वो था, ऐसा कुछ नहीं था। तो मगर वो खुश थे, और मेरे को लगता है उनकी वो जो खुशी मैंने देखी ना जब फेज 2 के बाद, मेरे को लगा कि अब मैं इस खुशी को गम में नहीं बदल सकता इंटरव्यू के बाद। तो वो एक चीज थी जिससे मैं भाग रहा था। मतलब मेरे को लगता है ना मैं कहीं हर फेज में किसी ना किसी एक से भागा हूँ। जैसे जब मैं फेज 1 का प्रिपरेशन कर रहा था तो दोस्त भी और कर रहे थे प्रिपरेशन, तो ये था कि आई डोंट वांट टू बी लेफ्ट बिहाइंड अगेन, पीछे, तो ये तो निकालना है कैसे। फेज 2 में ये था कि भाई मैं फिर से पीछे नहीं रहना चाहता, मेरे को निकाल के उस पार पे होना है। और जब इंटरव्यू था तो ये था कि अभी उनकी खुशी को वापस से गम में नहीं बदल देना है अब, क्योंकि मैं तो फिर से मान लो कर भी लूंगा इस जर्नी में, उन लोग को इतना अब यहाँ तक ले आए अब नहीं छोड़ सकते। उस मोटिवेशन से पढ़ा फिर इंटरव्यू के लिए। तो एक जो जर्नी थी आपकी फेज जो 2 अटेम्प्ट के बाद की, यार अपना टाइम कभी आएगा भी कि नहीं आएगा, और एक आपको इम्पॉसिबल लग रहा था ये, तो फिर उसके बाद जब आप इंटरव्यू में गए तो वो एग्जैक्ट फीलिंग क्या थी आपके इंटरव्यू वाले दिन? मतलब एक नर्वसनेस तो पक्का रही होगी यार कि मतलब नहीं हुआ तो इतनी मेहनत की है पिछले 3 सालों में, अगर नहीं हुआ मतलब एक वो फियर तो आ ही जाता माइंड में। तो एग्जैक्ट फीलिंग क्या थी आपकी जिस दिन आप इंटरव्यू देने गए थे? तो जिस दिन इंटरव्यू देने पहुंचा था उस दिन मेरा पहले तो जाते ही साथ पता चला कि मेरा नंबर बहुत लास्ट में, लास्ट सेकेंड है। तो इसका एक ड्रॉबैक ये होता है कि इतना सारा इनपुट आपको मिल चुका होता है उस दिन का कि आप अपनी ओरिजिनल प्रिपरेशन भी इधर उधर करके आपके माइंड में 100 अलग थॉट्स वॉन्डर कर रहे होते हैं। तो पहली चीज़ तो ये हो रही थी कि बहुत ज़्यादा इनपुट इधर उधर से मिलता जा रहा था, ये पूछा जा रहा है वैसा पूछा जा रहा है, और आपको ना हर इंटरव्यू यूनिक होता है, लेकिन आपको लगने लगता कि हर वो सवाल जो दूसरे से पूछा जा रहा है आपसे पूछा जाने लगेगा, आप उसमें फंस जाते हो कहीं ना कहीं। तो मैं भी ऑब्वियसली फंसा था, सबके साथ बैठा था तो, लेकिन मैंने करीब 1 घंटे पहले अपने आप को उससे दूर किया और ये रियलाइज किया कि अब यहाँ तक इंटरव्यू तक तो पहुँचा हूँ, ये पैनल इतनी एस्टीम्ड है, बोर्ड है, इनके सामने बैठे हैं, तो अब ना मैं यहाँ से कुछ ज़्यादा नॉलेज अब गेन कर सकता हूँ, ना मैं उनको कभी भी, यू कैन नेवर मेक फूल आउट ऑफ देम, वेरी स्मार्ट पीपल। तो जस्ट गैदर वॉट एवर यू हैव एंड डिलीवर इट। और मैं उसी के साथ, और बहुत ही सॉर्ट ऑफ थोड़े सा तो नर्वसनेस होती है, अपने आप को काम करने की कोशिश किया। और थोड़ा जब मैं बाहर बैठा भी था, मेरा नंबर आने वाला था, तो थोड़ा सा लग रहा था कि क्या होगा, इसका आंसर कैसे दूंगा, उसका क्या दूंगा, लेकिन अंदर बैठ के जाने के बाद चलता चला गया बस बड़े स्मूथ। वहाँ जाकर के मुझे नर्वसनेस नहीं हुई, भले कैसे भी क्वेश्चन पूछे गए, तो वैसा था। राइट। और ये पूरी जर्नी में गाइडेंस की क्या इंपॉर्टेंस समझते हैं कि मतलब गाइडेंस कितना इंपॉर्टेंट है, और एडुटैप ने आपकी प्रिपरेशन जर्नी में क्या मतलब सपोर्ट किया या हेल्प किया या गाइड किया? मेरे को लगता है गाइडेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब आप ऐसे एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने निकल पड़े हो जिसमें आपके कोई बैकग्राउंड नहीं है, जिसमें अच्छे अच्छे MBA फाइनेंस के लोग दे रहे हैं, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, श्री राम जैसे कॉलेज ऑफ कॉमर्स जैसे बड़े इंस्टीट्यूट से बड़े लोग दे रहे हैं, बैंकों में मैनेजर स्केल 3 स्केल 2 लोग दे रहे हैं। तो आप जब इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो और आप आउट ऑफ फील्ड जा करके कर रहे हो, तो गाइडेंस बहुत बड़ा होता है। और इसलिए मेरे को लगता है कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, पर्टिकुलरली एडुटैप जो है, ये बहुत बड़े ब्रिज हैं, बिकॉज यू एज एन इंस्टीट्यूट हैव नाउ been in this field for so many years, you have trained and you know got the people cross the line। तो जो भी गाइडेंस रहता है बहुत इनवैल्यूएबल रहता है। एंड आई वुड से कि फेज़ 1 तो इट्स लाइक ऑन योर ओन वाला होता है, हाउ मच यू प्रैक्टिस। फेज़ 2 के लिए आई सोली रेफर टू एडुटैप। इनफैक्ट बहुत लोग तो नोट्स बनाते हैं, ये वो, आई ओनली मेड नोट्स ऑफ मैनेजमेंट। उसके अलावा मैंने कभी ESI के लिए, फाइनेंस के लिए, इनफैक्ट कुछ चैप्टर मैनेजमेंट के लिए मैं नोट्स नहीं बनाता था। बस मैं एडुटैप की जो आखिरी में समरी शीट होती थी रिवीजन के लिए, उन्हीं का यूज़ करता था। तो वो मेरा एक मेन था। जैसा मैंने स्कीम्स का बताया कि वो स्कीम का बूस्टर डॉक्यूमेंट बहुत यूज़फुल रहता था इस बार, और जो अलग अलग चीज़ों की समरी भी समय समय पे आती, जैसे बजट की थी, इकोनॉमिक सर्वे की वो जो समरी थी, मैं इकोनॉमिक सर्वे एक्चुअली छोड़ के जाने वाला था। मेरे को लगा था क्या फेज़ 2 के पहले लगा था क्या ही पूछेंगे इससे,
लेकिन मेरे को लगा आखिरी में एक आया कि नहीं कवर कर लेते हैं, लेट्स नॉट लीव इट। और कुछ 15-20 पेज की थी, बहुत नंबर्स थे, और उसमें से आए क्वेश्चन, इकोनॉमिक सर्वे में जो डेटा था उसमें से क्वेश्चंस आए। तो मेरे को लगता है कि ये जो समरीज जितनी भी क्रिएट हो रही है ना, इन सब आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन, इतनी बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स, उनका सेंस बना पाना, क्या चीज़ ज़रूरी है नहीं है, खुद नहीं कर सकते आप अनलेस, क्योंकि अनलेस आप फुल टाइम ही ये कर रहे हो। तो उसमें बहुत हेल्पफुल मानता हूँ मैं एडुटैप को, जिस जगह पे मेरे को ये सारे समरीज और नोट्स मिल जाते थे, मतलब एंड यू जस्ट हैव टू स्टिक टू दैट, बिलीव इन दैट। सेकेंडली जो उसके बाद मेरे को इनवैल्यूएबल गाइडेंस मिला वो इंटरव्यू स्टेज में था, जब मॉक के लिए, अच्छा मेरा आ चुका था ये जो इंटरव्यू डेट, मगर मैं 1 महीने तक कहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि एडुटैप के मॉक इंटरव्यू का कि होता है नहीं होता है, कुछ सुनने में नहीं मिल रहा है इधर उधर। इट वाज नॉट एज मच एडवर्टाइज्ड एज जितना पब्लिकली नोन है फेज 2 का कोर्स एडुटैप का। तो मैंने फिर पता किया कॉल करके, तो पता चला कि यू गाइस वर प्रोवाइडिंग फ्री मॉक्स। उससे मैं और ज़्यादा हैरान हो गया, दैट टू जो पैनल प्रोवाइड कर रहे थे, मतलब दोज वर GM, CGM और RBI। तो मैंने बोला हाँ दिस इज मतलब वे मोर देन एक्सपेक्टेशंस। तो मेरा पहला इंटरव्यू शेड्यूल हुआ और मेरे को लगता है उस इंटरव्यू ने बहुत डायरेक्शन और गाइडेंस दी। शायद CGM S राजू शायद थे, या जो भी मैं शायद नाम बोल रहा हूँ, मगर वो थे, और उन्होंने कुछ जो क्वेश्चंस पूछे बैलेंस शीट पे, और उस पर उनके क्वेश्चन से मेरे को ये दिखा दिया कि चीज़ें मैं पता है, और मैं खुद उस डायरेक्शन में उस समय बढ़ना चालू कर दिया था कि चीज़ों के पीछे का वाई पता हो। मगर जिस तरह से उन्होंने पूछा ना, समझ में आएगा कि आपको वाई, बहुत सारी चीज़ों को मालूम होना जरूरी है। अगर आप वाई नहीं बोल पाओगे तो वहाँ यू विल फॉल फ्लैट इन इंटरव्यू। और अगले 1.5 महीने की तैयारी मैंने करीब 1 महीने शायद बचा था उसके बाद से उसी डायरेक्शन में की है फिर, कि सही से चले। और इसके बाद मैं एक और मॉक इंटरव्यू भी दिया था एक्चुअली एडुटैप का बाद में, फॉर टू गेट माई सेल्फ इवेल्युएट अगेन कि अब मैं कैसा कर रहा हूँ। राइट। तो आई वुड से कि मतलब एडुटैप वाज माय सोल एंड द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रिपरेशन। थैंक यू प्रतीक। और कितना मुश्किल होता है, मतलब जैसे हम एक बार एक स्टेज पे बढ़े जाते हैं, ठीक है, फिर फर्दर हम कहीं किसी स्टेज में रह गए, वापस से हमें स्टार्ट 0 से करना है, तो मतलब ये कितना मुश्किल होता है इस तरीके से मोटिवेटेड रह पाना कि यार आज तो मैंने इंटरव्यू दे दिया, चलो आपके केस में नहीं था वो, बस इंटरव्यू दे दिया, बस वहाँ सिलेक्शन हुआ, वापस से कल मुझे प्रीलिम से स्टार्ट करना है। तो ये जर्नी आपने देखी है हालांकि, तो मतलब कैसे मोटिवेशन आता है, खुद को कैसे मोटिवेटेड रखते हैं कि यार मुझे फिर से प्रिपेयर करना, मुझे पक्का क्लियर करना है वो चीज़? तो एक तो ये है कि ये एग्ज़ाम ऐसा है कि कोई भी मिस्टेक के लिए ना आपको आसानी से नहीं छोड़ता। इफ़ यू मेक 1 मिस्टेक, और या मतलब आपका उस दिन नहीं था जो भी था दिन, तो यू हैव टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। तो पूरा ईयर जो है ईयरली ग्राइंड है उसका। जैसे कि मेरे साथ हुआ कि सेकेंड ईयर जब RBI का सेकेंड अटेम्प्ट दिया और प्रीलिम्स में नहीं हुआ, और फिर जो था रियलाइजेशन इस चीज़ का कि अब छोटी सी मिस्टेक या किसी का भी कुछ नहीं है, तो आपको वो 1 साल पूरा देना है। लेकिन मेरा ये 1 साल पूरा देना है, और इस बार सिलेक्ट हो जाना ये भी दर्शाता है कि आपका उस बार कुछ भी नहीं हुआ था और इस बार सब हो गया। मतलब उधर से इधर में अंतर बस ये है, आपको छोड़ना नहीं है। क्या पता वो आपका अगला 1 साल, आपका अगला ग्राइंड विल टेक यू आउट ऑफ दैट लाइन। क्योंकि मैं तो बस ये सोचता हूँ कि अगर किसी ने पहला क्या दूसरा अटेम्प्ट या सीरियस दिया है, तो यू रीच टिल दैट स्टेज, यू आर गुड इनफ। कुछ चीज़ें थी जो आपके लिए नहीं वर्क करी, क्योंकि एक हमें रियलाइज करना होगा कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हम दे रहे हैं, है ना, और ये रिलेटिव कॉम्पिटिशन है। आपको कोई 1-2 नंबर से आगे बीट कर ले जाएगा, आपके साथ कुछ चीज़ें उस वक्त नहीं वर्क करेंगी, मगर इट्स नॉट दैट यू आर यूजलेस या यू आर नॉट मेड फॉर इट। अगर आपके क्लियर, आई कैन अंडरस्टैंड, अगर आपके 3-4 बार से प्रीलिम्स ही नहीं क्लियर हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, यू कैन बिकम होपलेस। बट इफ़ यू हैव क्लियर्ड दी प्रीलिम्स एटलीस्ट 1 टाइम्स, या आपने सीरियस अटेम्प्ट दिया है 2-3 बार में, तो यू विल रियलाइज कि यू आर गुड इनफ, वर्दी इनफ ऑफ क्लियरिंग इट। और बस एक अटेम्प्ट और, क्योंकि क्या पता यू विल गेट आउट ऑफ दैट लाइन। तो मोटिवेशन, इफ़ यू आस्क मी ना कि व्हाट इज़ दी बिगेस्ट मोटिवेशन, कि आई इमेजिन द सिनेरियो व्हाट विल आई डू विदाउट इट, एम आई ओके, मतलब इमेजिन द लाइफ विदाउट इट, ठीक है, कि आई एम नॉट प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस जॉब, आई इमेजिन दैट, एंड नाउ आफ्टर इमेजिनिंग इट आई एम सीइंग कि व्हाट इज माई लाइफ, यू नो, if you like it, go ahead with it, right, but if you don't, then be ready for the grind again, get yourself into it, and you may come out of it. Because I came out of it in 1 year. I was nowhere in after phase 2 in prelims, and now I'm here. Right. So it's definitely important thing. And if I would like to add one more thing, sort of the answer that I gave in interview related to these edtech materials. तो मेरे से एक सवाल पूछा गया था कि आप 3 साल से हो, आपने कौन सी बुक्स पढ़ी है वो,
तो मैंने बोला कि कुछ मैंने मेंशन की थी कुछ गवर्नर्स की देयर ऑटोबायोग्राफीज आई हैव रेड, सो दे सेड नो व्हाट इज द कोर्स बुक यू है, कोर्स बुक आपने पढ़ी। तो मैंने वहाँ पे एक आंसर दिया, शायद वो मेरे लिए वर्क किया भी होगा। मैंने यही कहा कि सर कोर्स में ऑब्वियसली सिलेबस में आरबीआई बुक्स प्रिस्क्राइब करता है, मगर अब उनको पढ़ते सारे लोग कोई नहीं, जो उसमें चीज़ें दी हुई हैं उस सब को सिंथेसाइज करके आज भी नो कि आज के समय जो एडटेक का समय, सारी चीज़ वट एवर थिंग यू वांट टू लर्न यू जस्ट गो एंड सर्च फॉर इट, यू विल लर्न एवरीथिंग एंड एनी स्किल यू कैन गेन। वो जमाने में हम रह रहे हैं, राइट। एडटेक और ये जो इस तरह से आपकी ऑनलाइन लर्निंग इज ट्रूली दी व्हाट वुड यू से द रियलिटी ऑफ टुडेज टाइम्स। तो मैंने बोला कि उनको कि जो हम एडटेक प्लेटफॉर्म से पढ़ते हैं वो तो सारा कंटेंट सिंथेसाइज करके ही देते हैं बुक का, तो अल्टीमेटली तो हमको वही लर्निंग मिल रही है बिल्कुल उसी की तरह में। तो इन्होंने बोला अच्छा आई रियली थिंक सो। मैंने बोला सर यू कैन टेस्ट, आई थ्रोन ओपन दैट फील्ड फॉर देम टू आस्क क्वेश्चन एंड दे आस्क्ड, बट कम से कम वो हेल्पफुल हो पाया वहाँ पे। तो ये एक एंगल ऐड करना बताना चाह रहा था मैं। राइट। तो अगर एक नोट्स की बात करें तो एस्पिरेंट्स को डाउट रहता है कि हम हार्ड में पढ़े कि सॉफ्ट में पढ़े, लेकिन कुछ इमेजेस आपने शेयर की थी वहाँ पर कुछ स्कीम स्टेप हमारा हार्ड में भी रखा हुआ था, प्लस आपने कुछ इमेजेस में दिखाया था कि आप लैपटॉप में फोल्डर्स थे, नोट्स भी थे आपके। तो मतलब आप एक्चुअली में क्या फॉलो करते थे, हार्ड या सॉफ्ट वर्जन? तो मेरा ये रहता था कि मैं करंट अफेयर्स के लिए और स्कीम्स वगैरह के लिए जिनमें ऐसा लग रहा ना कि बहुत सारा है, थोड़ा जरूरी आंखों के सामने दिखे, उसके लिए मैं हार्ड कॉपी प्रेफर करता था पढ़ने के लिए, कि आप अच्छे से हाईलाइट कर सकते हो, मार्क कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कुछ और लिख सकते हो। उसके लिए मैं हार्ड कॉपी पसंद करता था, ऐसे मतलब बेसिकली करंट अफेयर्स और स्कीम के लिए। कभी बाकी उसके बियॉन्ड जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो रिपोर्ट्स का समरी बनाना हो, चाहे बजट हो, इकोनॉमिक सर्वे हो, या चाहे आपकी कहना चाहिए कि फेज 2 के सारे चैप्टर्स हों, वो मैंने फिर उससे ही पढ़े हैं। हाँ, एक और दो चीज़ के मैंने नोट्स बनाए थे, बस मैंने जब फर्स्ट ईयर प्रिपरेशन की थी, मोटिवेशन और लीडरशिप के मेरे पास खुद के हैंड रिटन नोट्स थे। उसके बाद बाकी सब कुछ मेरा सॉफ्ट कॉपी था और उससे पढ़ता था और आराम से हो जाता था, कोई ऐसा वो नहीं लगता था। राइट। और फिर फाइनल रिजल्ट के बाद आपने इमेजेस शेयर की थी, वहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड्स, फैमिली ग्रुप्स में सब आपको बधाई दे रहे थे, फिर आपको लगा भी होगा फाइनली हो गया 3 साल से। तो मतलब वो फीलिंग क्या थी उस दिन की, जिस दिन रिजल्ट आया था आपको पता चला था मेरा सिलेक्शन हो गया, तो वो क्या फीलिंग थी उस दिन की? पहले तो जब आया तो थोड़ा सा ऐसा आपको वो चीज़ रियलाइज ही नहीं हो रही थी कि क्या हो गया है, इसके मायने क्या हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा क्या था कि मैं उस वक्त रास्ते में मार्केट में था जब इसका रिजल्ट आ गया तुरंत से, और मैंने चेक किया और उसमें नंबर तो था, तो मेरे को लगा कि मतलब आई हैव मेड इट। अब पर बात ये थी कि अभी तक ऑब्वियसली मेरे को, जैसे कि मैंने कहा ना कि अगर आप इतने समय तक इस प्रोसेस में रहते हो, सबसे पहले आपको सुकून आता है कि क्लोजर हो गया इस चीज़ का, है ना। एक हाई तो आएगा ही आएगा जो चीज़ है उस चीज़ का, लेकिन एक सुकून आता है कि फाइनली डन एंड डस्टेड वाला जो है, तो वो चीज़ थी। और खुशी तो ऑब्वियसली बहुत थी फिर, लेकिन मेरे को ज़्यादा खुशी कब हुई जब इस चीज़ का लोगों को पता चलना चालू हुआ, फैमिली में, फ्रेंड्स में। तो जिस तरह के आउटपोरिंग ऑफ इमोशंस हुए, जिस तरह के कहना चाहिए कि मैंने रिस्पॉन्सेज देखे, कॉल, मैसेज, फोन, हर तरह से लोग जिस तरह से रीच आउट कर रहे थे, दे वर मतलब जेन्युइनली हैप्पी। एंड व्हाट आई सॉ इन देम इज, एक जो चीज़ थी कि व्हाट दे सॉ इज कि गवर्नमेंट एग्जाम भी एक परसेप्शन सा बन गया था कि गवर्नमेंट एग्जाम्स निकल ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे फैमिली में मतलब पेरेंट्स और मेरे जो कहना चाहिए कि पापा के बड़े भाई वगैरह इन लोग हैं गवर्नमेंट जॉब में, लेकिन दे हैव, और उसके बाद जिन्होंने भी प्रिपरेशन की, और सॉर्ट ऑफ ऐसे ब्रॉड वाइड एक परसेप्शन बन चुका है कि गवर्नमेंट जॉब्स आर वेरी हार्ड नट टू क्रैक। मतलब आप कर भरे रहे हो, मगर करने वाला बंदा भी ये सोचता है कि यार निकल नहीं सकते, आसपास वाले भी ये सोचते हैं कि निकल नहीं सकता। तो जब इस लेवल का एग्जाम क्लियर हुआ ना, तो एक वो जो ग्लास सीलिंग ब्रेक करने वाला टाइप का फीलिंग आया मेरे को कि आई ब्रोक अ ग्लास सीलिंग। लोगों को लग रहा था कि ये चीज़ हो नहीं सकती है, ये किया नहीं जा सकता है, मगर जब कर दिया तो सबको लगा कि नहीं, हो रही है, पॉसिबल है, जॉब के साथ हो रही है, ऐसे याद कर। तो मतलब बहुत सारे लोगों के लिए मेरे को लगता है होप सी जागी है। मेरे खुद साथ के जो कलीग्स हैं, जो जूनियर्स हैं, जो अलग अलग जगह प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, उन्होंने बोला अब तो कोई रीजन नहीं है सर हमारे पास भी इस पे बोलने का कि जॉब के साथ है कि इसके साथ है। बिल्कुल। अब यू डिड इट विद दिस, मतलब हो रही है, लोगों का सिलेक्शन होता है, कोई ऐसा परसेप्शन बनाने का मतलब नहीं है। जस्ट डू व्हाट द एग्जाम रिक्वायर्स, जो प्रोसेस है उसमें आपको हेड ऑन भिड़ना पड़ेगा, आगे पीछे सोच के कोई पॉइंट नहीं है। तो कुछ आप टिप्स देना चाहें अगर फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए? तो फॉर श्योर। तो सबसे पहले तो जो भी फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं, मैं उनको बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि यू हैव कम टू द राइट पाथ इन योर लाइफ। अभी यहाँ से यू शुड नॉट डाउट कि इफ आई शुड डू सम अदर थिंग और सम अदर थिंग, या ये इफ दिस इज अ वर्दी ऑफ एन ऑप्शन और नॉट। वन वर्ड आंसर, इट इज एज प्रेस्टिजियस एज इट गेट्स, इट विल गिव यू एग्जैक्टली वॉट यू आर सीकिंग फॉर। तो पहली चीज़ तो मैं यही बोलना चाहूँगा। सेकेंड थिंग विच आई वुड लाइक टू टेल
द फ्यूचर एस्पिरेंट्स कि एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन के और उसके आसपास के जो एल्योर हैं और जो सारी चीज़ें हैं उनमें अपने को ज़रूरत से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं होना है। सिर्फ जो प्रोसेस है आपके कहना चाहिए कि हर एक राउंड की आप मतलब आई विल गिव एडवाइस टू एवरीवन जो अभी न्यू एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए ज़रूरी ये है कि ऑब्वियसली यू विल स्टार्ट टू स्टडी इकोनॉमिक्स फाइनेंस, आपको मज़ा आएगा उसको पढ़ने में, लेकिन डोंट टेक दी प्रीलिम्स लाइटली। इस एग्ज़ाम का प्रीलिम्स ओवर द ईयर्स कठिन होता जा रहा है, तो प्रीलिम्स को सीरियसली लो और ओवरऑल प्रिपरेशन जो भी कर रहे हैं आई वुड से कि डोंट ट्राई टू फाइंड हैक्स और क्रैक्स। स्ट्रेटजी सब अपनी अपनी बनाते हैं, बट एट द एंड आपको खुद को भी ये चीज़ समझ में आ जाएगी और इंटरव्यू पैनल को भी ये चीज़ समझाना है कि यू आर वेरी सीरियस फॉर दिस, इट्स नॉट समथिंग दैट यू आर इंटेंडिंग टू ट्राई और लक में क्लियर हो जाए, लक बाय चांस नहीं हुआ है ये चीज़। तो आपको अपने आप को भी उसमें नहीं रखना है गलतफहमी में, और कभी एंड यू हैव टू सॉर्ट ऑफ गिव योर फुल फोकस और स्पेसिफिक एफर्ट्स डालने हैं इस चीज़ को लेकर के। तो एक तो ये है, मतलब बहुत हाई लेवल गाइडेंस ये है कि सीरियसली करना है इफ़ एट ऑल यू हैव टू डू इट। और अगर स्पेसिफिक गाइडेंस मैं दूं तो जैसा कि मैंने कहा कि प्रीलिम्स में आप करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा डिटेल, बहुत ज़्यादा महीनों के नहीं कर पा रहे, इट्स फाइन, 3 महीने के ही करिए, लेकिन डिटेल में करिए। पीआईबी वगैरह के सारे जो नंबर्स हैं लगेंगे शुरू में डॉन्टिंग कि इतना कौन पूछता है, मगर सर पूछते हैं, एंड एक बार पढ़ने के बाद यू गेट द ग्रिप ऑफ इट, तो उसको पढ़ना जरूरी है। क्वांट रीजनिंग इफ ऑब्वियसली शुड बी प्रैक्टिस्ड एज मच एज यू कैन। फेज 2 के लिए कुछ टिप्स ये दूंगा, क्योंकि अब आप पढ़िए अपने तरीके से जैसे भी पढ़ना है, मगर जो आरबीआई एडिट चीज़ें लिखता है, रिपोर्ट्स पढ़ने के लिए बोलता है, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, करंट अफेयर, इनको बिल्कुल नहीं इग्नोर करना है। सिर्फ कोर सिलेबस पढ़ के आपका नहीं काम बनना है, ये सारी चीज़ें फॉर्म एज मच पार्ट ऑफ दी सिलेबस एज योर कोर सिलेबस, तो वो चीज़ें हैं। और आंसर राइटिंग के लिए मेरा ये सजेशन है, क्योंकि जो फॉर्मेट वहाँ पे रहता है वो बड़ा ही ब्लैंड सा फॉर्मेट, उसमें आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हो, तो आप अगर सिर्फ आंसर अपने लिख के आ जाओगे ना तो नहीं दिखेगा। तो आई वुड सजेस्ट कि आपको, जैसे आप अपना ना इंट्रोडक्शन आंसर का लिख रहे हो, इंट्रोडक्शन कैपिटल में लिख दो, भले वो लग रहा है कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, बट लिख दो कि दिस इज माई इंट्रोडक्शन, यहाँ पे मैं जो है इसके पॉइंट्स लिख रहा हूँ, जैसे इफ यू आर सेइंग 5 पॉइंट्स दैट एक्सप्लेन दिस, राइट इट इन कैपिटल लेटर। कंक्लूजन या वे फॉरवर्ड, राइट इट इन कैपिटल, क्योंकि दैट्स द ओनली वे दे आर गोइंग टू सी इट। नहीं तो इफ यू जस्ट राइट इट इन पॉइंट्स और नहीं किया तो नहीं समझ में आएगा। बुलेट्स नहीं बना सकते, बट यू कैन मेक न्यूमेरिक्स 1 2 3 4 करके आप नंबरिंग कर सकते हैं, दैट इज अनदर वे। सब पॉइंट्स को भी यू कैन मेक इट इन कैपिटल। तो ऑल दिस इज बेसिकली आपका आंसर इज रेड। ऑब्वियसली स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह नहीं करनी, मगर ये स्ट्रक्चर ज़रूरी है काफ़ी ज़्यादा। तो ये आंसर राइटिंग के लिए मेरा सजेशन है लोगों को। बाकी मैनेजमेंट को बहुत ईजी चैप्टर माना जाता है, ईजी सब्जेक्ट माना जाता है, और उसको लोग ऑफन पीपल टेक इट लाइटली। आई वुड सजेस्ट कि कवर इट एंड टू एंड, उसका बहुत ROI है। अगेन किसी भी ऐसे कोई चैप्टर्स नहीं कि आप उठा लें और बाकी छोड़ दें। ESI के लिए यू हैव टू लॉट ऑफ बी इन सिंक विद करंट अफेयर रिपोर्ट्स और सारी चीज़ें, स्कीम्स वगैरह। फाइनेंस के भी अगेन यू नीड टू कवर ऑल दिस चैप्टर्स। तो ये तरीका है कहना चाहिए कि फेज 2 का इफ आई समराइज, इट्स बेसिकली जो आंसर राइटिंग के लिए मैंने बताया, मेक इट क्लियर व्हाट सेक्शन इन व्हाट पॉइंट यू आर राइटिंग, और जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, रिपोर्ट, समरी एंड स्कीम्स एंड ऑल, कवर देम वेरी वेल, वेरी थरोली। PIB के न्यूज़ होगा, इनको थरोली पढ़िए। और फाइनेंस के भी सेम चीज़ है, डोंट थिंक ट्राई टू फाइंड 2-3 चैप्टर है, एक बार समझ में आ जाएंगे, इट्स वेरी इजी टू रिवाइज, दैट इज दैट। एंड व्हेन यू फाइनली कम टू इंटरव्यू, I would suggest first and foremost get the answer to why you want to get into RBI, and this answer should be very clear in your very clear and coherent answer should be there, and that you need to explain well, because this will get you in or out. This is first question to any interview. Either you are already working in bank or coming from outside field, you should have a clear answer of this, और इस पे काफ़ी इंट्रोस्पेक्ट करके एक अच्छा आंसर बनाने की जरूरत है। It should not that you will, an RBI interview by the way is not something जो हम अक्सर लोग सोच लेते हैं ना कि इंटरव्यू इट्स लाइक मेरी पर्सनैलिटी है, वो क्या होगा, मैं वहीं जाके दिखाऊंगा। ऐसा नहीं होता है, इसमें बहुत प्रिपरेशन की ज़रूरत है। तो आप ये सब जो 2-4 आंसर्स हैं अपने अच्छे से इंट्रोस्पेक्ट करिए, और फाइनली चीज़ों के, जब आप इंटरव्यू के पहले हैं, मैं तो कहूँगा फेज 2 के भी पहले, चीज़ों के वाई के पीछे जाइए, कॉन्सेप्ट समझिए। देयर इज नो वे टू हैक इट। अगर आप उस चीज़ को समझ जाएंगे, प्रॉपर प्रोसेस के अंदर होंगे, तो यू विल मेक इट। और बाकी कॉन्फिडेंट रहिए कि वाई यू वांट टू बी इन RBI, वो एक सीरियसनेस दिखनी चाहिए, सिंसियरिटी दिखनी चाहिए। आई थिंक दैट्स ऑल। और इंटरव्यू में पर्सनैलिटी ऑब्वियसली जज होती है, कोई डर किसी झिझक के साथ जाने की आई डोंट थिंक किसी को भी ज़रूरत है, बिकॉज दैट इज ओनली गोइंग टू टेक गिव यू लेसर मार्क्स। सो ये है ओवरऑल
और लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट थिंग आई वुड से इज एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है. मैं तो कभी नहीं सोचता था कि मैं कोई एग्ज़ाम क्लियर कर पाऊंगा. जिस तरह की जॉब मैं कर रहा था उसमें होपलेस तरीके से मैं अपने इस अटेम्प्ट की भी तैयारी कर रहा था. होपलेस इन द सेंस ये नहीं था कि मेरा हो ही जाएगा. आई वॉज जस्ट फॉलोइंग दी प्रोसेस और हर फेज के बाद आगे की हुप लगाता था. तो बिल्कुल क्लियर हो सकता है ये एग्ज़ाम. और जिसने आई वुड से अगर दे दिए हैं कुछ साल तो डोंट लीव इट इन बिटवीन. क्या पता अगला साल आप ही का हो और आपका सिलेक्शन भी हो जाए. तो डेफिनेटली पॉसिबल है. बहुत ज़्यादा डाउट में अपने आप को मत रखिए. बी वेरी क्लियर. क्लैरिटी ऑफ थॉट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और खुद पे सेल्फ बिलीफ. ऑब्वियसली ये सब कहते हैं मगर क्योंकि ये वर्क करता है. अदर्स विल नॉट बिलीव इन यू अंटिल यू बिलीव इन योर सेल्फ. सो हैव दैट सेल्फ बिलीफ एंड जस्ट कीप. एंड वो जो ग्राइंड है ना एग्जाम का कि फिर से करने वाला, देयर इज नो अल्टरनेटिव टू इट. एक्सेप्ट दैट रियलिटी और उसको में जुट जाइए. 2-4 दिन बाद वो ग्राइंड भी नहीं लगेगा. यू विल बी अगेन इन सिंक कि मैं तो ये चीज़ ऑलरेडी कर रहा था और करते रहोगे. एंड यू विल अल्टीमेटली मेक इट वन डे. मतलब आई वुड want everyone to be part of RBI who are seeing this video, and I will shake hands and hug you, all of you who finally get into RBI. So my welcome to all of you, and I wish you best of luck for the for your exams, and hope the you make it to the finish line, and all the best. सो गाइज, अगर अभी तक आप बहाना मार रहे थे कि मैं वर्किंग हूँ, या आप बहाना मार रहे थे कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं 4-5 घंटे ही कर सकता हूँ, या आप बहाना मार रहे थे कि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मैं फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मैं इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से नहीं हूँ, तो अब ज़रूरत है इन सारे बहानों को अलग करने की और प्रिपरेशन स्टार्ट करने की. और आपके सामने इन सारे बहानों को गलत साबित करके सिलेक्शन लेते हुए बैठे हैं यहाँ पे प्रतीक गौतम. आपने देखा होगा. आई होप ये स्टोरी आपके डेफिनेटली काम आएगी, आपके प्रिपरेशन जर्नी में आपको इंस्पायर करेगी. सो वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, एंड थैंक यू वेरी मच प्रतीक फॉर कमिंग हियर एट EduTap. And we on the behalf of team EduTap congratulate you once again for achieving this milestone. Thank you very much, sir. Thank you very much. Thank you.